selling as well, and he has a very good command over technical. So today's session would be more oriented towards the fundamental side of his journey. Though I myself feel not, I mean, capable of asking questions on FNO, but again, would try to ask some questions from our end. And with me, Kanan and Vajpayee will be co-hosting today. So, Arush, very welcome and over to you. Thank you so much, Prince. It's really a great opportunity to connect with you and a wonderful audience of yours and your community. So it would be fun. It would be fun discussing concepts of volume analysis. Great, Arush. So let me straight come to a very starting question, like how it all started for you, how you developed passion for markets and especially trading and FNO all, how you graduated position where you are currently. Right, right. So basically, my journey of stock market, financial market started when I was in school. So when I used to return from home, this was around 2010, 11 or something like that, sometime around that. When I used to return from school, I used to watch. My parents were watching CNBC TV 18, and the amazing anchors were there like Udyan Mukherjee, Mithali Mukherjee, and CNBC was the top show when it was it was regarding stock market. So when I used to return home, I used to see all the action on the TV, like a lot of stocks were going up, going down, like it happens even today, and how it has happened over multiple years, like since many years this has been going on. So I was curious, like everybody is curious when stocks are going up and down, and even today, a lot of people come and they are very surprised when let's say at time of Russia Ukraine war, stocks were falling so much, so people were actually filled with a lot of fear. And there are times like 2020, then even in those times people are perplexed why stock market is going up. So stock market always surprises us, always impresses us, or always puts in equation of fear and greed. So even I was attracted to stock market at a very early stage. So I did my transactions, first transaction when I was in 8th standard. And I happened to open account in my name of my sister, and I wanted to do something in stock market. So I tried my hand in stock market very early, and then with time I also, well, in the early stage I also tried bullion market. That is gold and silver. I tried to buy gold and silver in physical market, not in MCX, because around 2010, 11, 12, at that time, silver touched 75,000, and after that we haven't seen those prices. And that happened because central bankers around the globe were, promoting easy money, like it happened in 2020. They were printing a lot of money, so gold and silver shot up because easy money results in inflation, and inflation results in appreciation in gold, because gold is hedge against inflation. So at that time, gold and silver were the best asset class, and stock markets were in a period of lull. They were consolidating, and they got a fresh life in 2014. At that time, I was in my college, and I used to trade stocks. Faculties were teaching in the class, so I even did that. And I once came across the book called Technical Analysis from A to Z, and that book introduced me to concepts like RSI, MACD, trend line, trend, Dow theory, super trend, etc., etc. All the theories of all the strategies, technical strategies, etc. And after that, I completed my chartered market technician, which is a gold standard course in technical analysis. I did my CFT, I did CFP, and all those things. So as of now, I have experience of more than 8 years in financial markets, and I track cash market, I track derivatives, I do trading in index options, index futures, stock options, stock futures, commodities, currencies. So I don't have any rigidity when it comes to strategies like option buying, option selling, futures, or I have to specifically do something regarding equities, commodities. There's no restriction, because I'm as a technical analyst. I'm looking for trends,
and trends are there in equities, commodities, currencies, everywhere. So that's how I evolved, and in the later stage I'm very much focused in derivatives because that is the place where the big money is, and you can take good advantage of leverage. Although there's also other side of the coin, as the Warren Buffett says that derivatives are weapons of mass destruction. So it's a very sensitive thing, like it's a very दो धारी तलवार की तरह derivatives. Either you can make a lot of money or you can lose a lot of money, but you can't stay in middle. Like you can't earn money like equities, जो एक stable return देता है. But derivatives is always that, it's like a racing car, like Ferrari. या तो बहुत तेज चलती है या तो कुछ भी नहीं होता. Nothing like I-20 or I-10. So derivatives is that kind of an instrument. So I'm concentrating more on derivatives. I have good grip on the direction. So hence I participate very actively in derivatives. I'm also active in cash market. So that's my profile as such as of now. Great, great. So, Arush, like when you started and you have graduated, I mean, almost 8+ years in market. So, initial journey would be different, and as we, I mean, grow the curve, we learn so many things. So, I mean, your knowledge is all about self-learning, or you have any, I mean, what we say, someone, a mentor kind of person, or something where you learned all this? And what about like the fundamental side of investing? Basically, I mean, you told about cash market, right? But again, I mean, are you into long term investing as well? Uh, I started, everybody starts as an investor, but slowly after 10 days, they turn into a trader when they see good profit, or when they are in losses. Usually, when they see good profit, चलो 5-10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, तो जल्दी लेके निकल लेते हैं. So everybody starts like that. So मैंने सबसे पहली बुक जो छुई थी, मतलब थोड़ा जो आइडिया था एज अ न्यू बिगनर, हम हमेशा वॉरेन बफेट की बुक्स के बारे में सुनते हैं. तो उनकी एक बुक है ना, ये रेड कवर पेज है उनका, एंड आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट मैंने वो बुक पढ़ी थी, तो उसमें कैश फ्लो की बात कर रहे थे एंड फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की बात करते थे. तो दैट वाज समथिंग व्हिच आई डिडंट अंडरस्टैंड मच, आई कुडंट रिलेट मच. आई कुड रिलेट मोर टू द पैटर्न्स. तो मैंने टेक्निकल चालू किया, एंड टेक्निकल गिव्स यू एन एज टू गेट इन एंड गेट आउट क्विकली. तो मैंने उस तरीके से चालू किया, एंड राइट नाउ मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ. आई डू स्विंग ट्रेडिंग विच इज फॉर 2 to 4 weeks, and I also hold positions for 3 months, and I also do intraday. So I'm little more inclined towards short term period. That's great. So, Kanan and Vajpayee ji, feel free to come in between and ask questions from Arush. So, Arush, let's come to technicals. Like for a beginner, what would be your suggestion? Like how one can start with the technicals, and how it can help them with the, say, the entry and exits. And you talked about swing trading, right? So how to Mhm. identify good trends which can help a person at get a good entry, and what could be the what we say, not the best, but a comparatively good strategy to exit as a gain at a gain. Right, right. So your questions saying that how should a new beginner, a starter, person who has recently started, how should they start? So one thing is very important, and I also missed your previous question, that how did I learn stock market? So I read a lot of books. First of all, I had my certifications and degrees in this field, but most important thing would be, experience taught me a lot of things. Those sleepless night when I had put all my money in a stock, and that stock was going southwards, and there were few nights where I started researching about stock because I was very much stressed and tensed, and I was researching about the stock for the whole night. I didn't sleep for 2 days. So those 2 days actually taught me a lot about stock market. It taught me, actually I did a lot of research in those hours, and second, it instilled a confidence in me that I can myself find stocks. I don't need to rely on anybody else. So a new beginner, you rely on a lot of newspapers, a lot of articles. Now people don't read newspapers, they go on Twitter.
and they read all sorts of things. So previously the problem was, absence of information, lack of information. Today the problem is abundance of information. इतनी सारी information है, इसमें noise क्या है, सही क्या है, वो आपको छांटना है, वो आपको खुद ढूंढना है. तो प्रॉब्लम वहाँ है, लोग थोड़े भटक जाते हैं. तो आपको इतनी रिसर्च करनी है कि यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर स्टडी, योर सिस्टम, कि यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन एनीबडी एल्स. तो मैंने जो सीखा ना, मेरे एक्सपीरियंस से सीखा. अगर आप बहुत सारी चीजें ट्राई करो, और उसमें फंसोगे ना, तो यूल डू योर रिसर्च. और स्टॉक मार्केट में फंसते हैं तो सब रिसर्च करते ही हैं. एक बार तो देखते हैं कि कंपनी करती क्या है. पहले नहीं देखा होगा, बाद में जरूर देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ट्रेंड क्या है. सो व्हेन यू आर स्टक इन a position, you'll actually try to learn new things, or from there your learning curve would start, and you're in a state of mind that you want to learn more. So as a beginner, you should try more and more trades with less risk. So when you're stuck, you'll try to learn new things, and that would actually shorten your learning curve, and that will take you in right direction to learn new things. And you can start with a lot of books, technical analysis from A to Z, or books by John Murphy, John Bullinger, uh, so Candlestick Patterns by Steve Nissen. So there are a lot of standard benchmark books, good books, which you can read to start with. And the thing which will help you the most is experience and failures. So in stock market, give at least 2 to 5 years, and don't expect anything from stock market, because if you treat it as a learning period or learning phase, then after 5 years, you will naturally have confidence. So it's like, as an athlete, you make a lot of mistakes, and then last time I made that mistake, so if I don't repeat this, then my timing could be little better. In stock market, as there are so many random variables, so many new things come up in the stock market every day. So after some time, you'll understand that, oh yes, I remember last time when that happened, I need to react in this manner. If that happens, then I will react in this manner. You'll have a rule book, you'll have an understanding, you'll have control over your emotions, you'll have aggression when that is required. So experience will teach you the important lessons. Right. But Arush, like when we start, normally most of the people have limited capital, or their ticket size are small, right? And if they burn their fingers, say in derivatives or so, so that is a major hindrance to their coming back to the market, right? So on that front, like how had been your journey initially? Like we all make mistakes, and it is wise to learn from our mistake. That is very relevantly said. But again, easy said than done. But initial, how were the initial years when it comes to mistakes, and how you got out of those mistakes? So, everybody has limited resources. I had limited resources, and as you said, a new beginner has limited resources. So that's a constraint, and it may stop the market participant from coming back to the market. So that is also an important motivation for you कि भाई मेरे इतने पैसे खो गए मार्केट में, मैंने इतने पैसे तोड़ दिए, अब मैं क्या करूं. यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, और मैं क्या करूं के बाद इंसान सोचता है कुछ सीखना पड़ेगा. फिर वो अलग अलग वेबसाइट ढूंढता है, कुछ ना कुछ ट्रेनर को ढूंढता है, या कुछ इंटरनेट पे पढ़ने का ट्राई करता है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है. सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. अगर सबके पास अनलिमिटेड रिसोर्स होते तो कोई मोटिवेशन नहीं होता काम करने को, क्योंकि अगर मेरे पास हर वक्त 100 रुपए आ रहे, मैंने 100 रुपए डाल दिए, फिर मुझे पता है मेरे पैसे चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 रुपए कल फिर से मिल जाएंगे. सो एवरीबडी हैज लिमिटेड रिसोर्स, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन. तो मेरा भी ऑब्वियसली मेरा भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और फिर यही होता है, लाइक एनी अदर मार्केट पार्टिसिपेंट, हर एक ह्यूमन को लॉसेस से बहुत मतलब दुख होता है, बहुत दर्द होता है कि यार लॉस हो गया, यार अब पैसे चले गए, क्यों गए, मेरी गलती थी, ये था वो था. एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, एंड दैट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन, दैट एक्ट्स एज फ्यूल फॉर यू टू वर्क हार्ड. सो आई यूज्ड इट इन दैट मैनर. मैंने तो उसको इस तरह सीखने की ट्राई करी, और
मैं क्रॉसवर्ड जाता था, बुक्स पढ़ता था टेक्निकल एनालिसिस की। फिर मैंने इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स ली, वो पढ़ी। मैंने सब कुछ पढ़ा, मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फिर क्लासिक जितनी भी स्टडीज थी ना, तब मैंने सारी सॉल्व करी। उस हिसाब से मुझे एक अच्छा एज मिला। Right. Yeah, Kanan, you can go. Yeah, thanks, Prince bhai. Thanks, Arush. It is a pleasure listening to your experience. So, पहले तो मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैंने 2019-20 में ट्रेडिंग करनी चालू की थी। एंड यू सी, मतलब मैं क्या एक्सपीरियंस करता हूँ, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रश होता है एंड यू कीप ऑन लुकिंग एट योर स्क्रीन ऑल द टाइम। तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करते हो? हाय कनन, फर्स्ट टाइम वी आर कनेक्टिंग, गुड टू कनेक्ट विद यू। ग्लैड ग्लैड, हाँ जी। So, so you have a very relevant question कि स्टार्टिंग में यू आर लाइक अ चाइल्ड, यू नो, एक बच्चा कैसे थोड़ा सा चंचल होता है और थोड़ा मस्तीखोर होता है, और इट्स फुल ऑफ इमोशंस। और जैसे ही हम लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते हैं, लाइक एक बच्चे को देख लो, 10 साल का बच्चा, 15-20 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, और एक इंसान को देख लो जो शायद अपने 50s में है। दोनों के बिहेवियर में बहुत फर्क होता है। क्यों? क्योंकि जो 50 साल वाला है उसने इतनी दुनिया देखी होती है ना, कि अब वो जो एक्सपीरियंसेस है वो उसको सरप्राइज नहीं करते। तो इसलिए वो इरेशनली उस पर रिएक्ट नहीं करता। और बहुत एक नया बच्चा क्या होता है, कुछ देखता है तो बहुत शॉक हो जाता है, कभी एकदम हंसने लगता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है, कभी डर जाता है, बिकॉज उसने वो चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। और सेम इज ट्रू इन स्टॉक मार्केट। जब हम नए आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, जैसे 2020 है, कितने सारे लोग ने 2020 में मार्केट स्टार्ट किया, तो उनके लिए बहुत डिफरेंट मार्केट है। उन्होंने कभी मंदी नहीं देखी, तेजी चल रही है, 2020 से तेजी चल रही थी। अब जब करेक्शन आया तो उन्होंने बोला, यार मैंने तो सोचा ही नहीं था स्टॉक इतना नीचे आ सकता है। दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ पीपल कि मैंने सोचा ही नहीं था इतना नीचे आ सकता है, क्योंकि मैंने जब लिया था सब सब ऊपर जा रहा था, और सब कह रहे थे बाय द डिप्स, बाय द डिप्स, और वो डिप चलती रहती थी, ऊपर जाता रहता था स्टॉक। इट यूज टू ऑलवेज वर्क, अभी वो वर्क नहीं कर रहा है। तो व्हेन यू कम इन द मार्केट, तो थोड़ा ये सब एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, तो यू विल सोबर डाउन इन लाइफ, थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाती है, इमोशनल डिसिप्लिन। और जो एकदम टॉप लेवल के ट्रेडर है ना, वो लोग एकदम शांत रहते हैं, एकदम काम रहते हैं। तो दे आर एबल टू डील विद ऑल दीज इमोशन, जो इमोशन का रश है उससे डील कर पाते, क्योंकि बहुत चोटें खाई है। ठीक है, चोट खाने के बाद अक्ल आती है, ऐसे बोलने से नहीं आती है, खाने से आती है। तो चोट खाने के बाद इंसान सुधर जाता है पूरा। साइकिल चलाते एक बार साइकिल से गिरते तो पता चलता है कि अगली बार ऐसे नहीं चलानी है, वरना गिर जाएंगे। तो वो बोलने से नहीं आता, वो गिरने से आता है। तो दैट हैपेंस विद टाइम। और वेरी मैं नाइस। अपनी बात करूं तो पता है, बहुत सारे लोग हैं जो पूरा टाइम स्क्रीन के आगे रहते हैं और स्ट्रैडल बेचते हैं, स्ट्रैंगल बेचते हैं, एंड दे आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूं, और मैं अपने ट्रेड लेके बाहर भी आराम से घूमने जाता हूं, अपना काम करता हूं, और मैं सिर्फ ओकेजनली देखता हूं। मुझे पता है मेरी पोजीशन पे मुझे कॉन्फिडेंस है, और मैं उसको हर वक्त नहीं देखता हूँ। तो आई एम एबल टू डू थिंग्स। और मैं स्टॉक मार्केट चल रहा था तब मैं काफी यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ, इवन थोड़ी मूवीज सीरियल्स भी देख लेता हूँ, सीरीज भी देख लेता हूँ। तो that's how I treat stock market. You shouldn't always stay in the market, because more screen time is more anxiety, and more anxiety means more mistakes. So you should keep that in mind. गॉट Great, इट, great. वेरी नाइस, वेरी So, नाइस। Arush, like trading and the derivatives are basically zero-sum game, right? So, would you like to tell our attendees about the dark side of, I mean, what they should not do initially, and what could be the severe consequences when it comes to leverage? राइट। तो मैंने जैसा अभी बोला था कि वॉरेन बफे कहता है कि यू नो डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में जो ट्विटर पे उनको बताने की जरूरत है कि कितना डेंजरस है ये, क्योंकि सबने एक दो बार तो ट्राई करके देख ही लिया है कि आजकल कॉल पुट का जितना वॉल्यूम है एनएससी पे, 90% जो वॉल्यूम होता है वो डेरिवेटिव्स का ही हो रहा है, कॉल पुट का। तो ऐसा कोई इंसान अभी बचा नहीं है जिसने कॉल पुट एक्सपीरियंस करके नहीं देखा। मतलब शायद होंगे, नहीं करा होगा, पर सबको पता है कि इतने बड़े M2M आ रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत बड़े प्रॉफिट लॉस होते हैं। सो एवरीबडी नोज दैट कि बहुत मैंने जैसा बोला कि दो धारी तलवार है। और लिवरेज इज लाइक यू हैव 100 रुपीज एंड यू बाय असेट क्लास ऑफ assets worth 1,000 rupees.
या फिर 5,000 रुपीज। अभी तो एक्सचेंज ने लिवरेज थोड़ा सा कम कर दिया है, वरना पहले लोग 20x 30x 50x क्या क्या होता था। एंजल ब्रोकिंग में तो 60x होता था। मतलब इफ यू हैव 1 लाख रुपीज यू कैन बाय स्टॉक्स वर्थ रुपीज 60 lakhs। मतलब आधा परसेंट बड़ा घटा, 1% बड़ा घटा, योर अकाउंट विल इधर डबल और या बिल्कुल साफ हो जाएगा। और दैट हैपेंस इन सेकेंड्स। 60x लिवरेज मतलब क्या हो गया, 1 लाख की 1 लाख पड़ा है फंड एंड यू आर बाइंग स्टॉक्स वर्थ 60 lakhs। तो 60 lakhs का 1% होता है 60,000। मतलब 60% रिटर्न 1 मिनट में, बताओ। तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है लिवरेज। और कॉल पुट डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स इस तरीके का है, जैसे फ्यूचर्स में 25% मार्जिन देना पड़ता है, 20% 25% डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी, मतलब 4x लिवरेज है। और ऑप्शंस क्या है कि दोज आर एक्सपायरिंग एसेट्स, मतलब थर्सडे को जीरो हो जाते हैं। तो कितने लोग जीरो हीरो खेलते हैं और उसी में उनका पैसा जीरो हो जाता है, क्योंकि वो हीरो बनाने के चक्कर में जाते हैं पर वो हो जाता है जीरो। दिस इक्वेशन गोज हैंड इन हैंड कि अगर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न कमाना है तो बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। वन शुड अंडरस्टैंड दैट कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। ज्यादा रिस्क मींस मोर लॉसेस। तो अ, हमने सोशल मीडिया पे बहुत एग्जांपल्स देखे कि कितने सारे लोगों के पैसे चले जाते हैं, बहुत सारे। और पर्सनल लाइफ में भी दोस्तों से सुना होगा बहुत पैसे चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा इंसान है जो नहीं जानता कि डेरिवेटिव्स कितना रिस्की है, बहुत रिस्की है। और अगर आप देखते हो कि ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा लॉस भी है। ये एक बहुत मैच्योर्ड, यू नो आई थिंक, मतलब बहुत सीजन प्लेयर के लिए इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस। जैसे मैंने बोला कि 60x लिवरेज मिल रहा है, यू नो अगर कुछ न्यूज आ रही है एंड बिफोर यू थिंक, उससे पहले 60% वाइप ऑफ हो सकता है। यू कांट इवन थिंक। और लोग तो यहाँ क्या सोचते हैं कि चलो थोड़ा ऊपर आएगा तो काटूंगा, तब तक तो लॉस हो जाता है बहुत सारा। सो क्योंकि ये इतना ज्यादा, कैश और डेरिवेटिव्स में क्या फर्क है, कैश इज 1x, मतलब जित 100 रुपए तो 100 रुपए का ही ले सकते हैं। डेरिवेटिव्स इज 5 to 10x लिवरेज। सो बिफोर यू थिंक अकाउंट में 5 से 10x ज्यादा इम्पैक्ट ऑलरेडी आ जाता है। सो यू डोंट गेट टाइम टू रिएक्ट एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक। इसलिए ये बहुत डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है। और मैं सबको यही कहूंगा कि अगर खुद पे कंट्रोल नहीं है ना तो डेरिवेटिव्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव्स में जो इंसान काम करता है, ज्यादातर लोग 90% लोग को खुद पे काबू नहीं रहता। और स्टॉक मार्केट का जो पूरा गेम है इमोशनल डिसिप्लिन का है, खुद के दिमाग पे कंट्रोल रखने का गेम है। सो ओनली दोज पीपल विन हु हैव कंट्रोल ओवर देयर माइंड एंड on their emotions. Only those people can win. So you should go into derivatives once you have gained good, you know, control over yourself. Even experts like Vijay Kedia says that कि मैं derivatives नहीं करता हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं, राकेश झुनझुनवाला used to say कि डैडी बोलते थे सिगरेट मत पियो, मैं पीता हूँ, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा बोलते थे। ठीक है, तो ही यूज्ड टू से कि हर एक बंदे का ये बस का काम नहीं है। So if you have good control over yourself, only then you should go in derivatives. There's always a very big risk lurking over there. Right, great, great. So from the attendees, if you have any question, please feel free to send us speaker requests. So Arush, you talked about swing trading, right? So basically, what are, I mean, see, like when it comes to fundamentals, good fundamentals give you an edge. Like if you make a wrong choice, even then you have possibility of losing less, right? सो स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली टेक्निकल्स में क्या क्या आप देखते हैं, कौन सी मूविंग एवरेजेस या क्या क्या आपका रहता है, थोड़ा ब्रीफली अगर बताएंगे। Technicals में, right? राइट राइट। हाँ, तो बेसिकली आई लुक एट प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, एवरीबडी सेज दैट, बिकॉज दैट्स a true reflection of what's actually happening in the market and what is about to happen. That shows interest of the institutions. Volume also shows interest of the institutions. What are they trying to buy, what are they trying to sell? जैसे मैंने अभी पीबी फिनटेक का डाला था, तो मैंने पीबी फिनटेक, आई डिड गुड accumulation in that stock and उसमें you could see good volumes and
नॉट ओनली दैट, फिनो पेमेंट में अच्छा अक्यूमुलेशन, वॉल्यूम अक्यूमुलेशन हम देख रहे थे, वो ऑलमोस्ट 30-40% बढ़ा मेरे ट्वीट के बाद. तो एक्चुअली आई लुक एट वॉल्यूम्स, आई लुक एट प्राइस एक्शन, आई लुक एट RSI, I look at different oscillators. So I'm a discretionary trader and I keep experimenting with new strategies, new tools, and I have my mindset all set. Like मुझे थोड़ा देख के आइडिया आ जाता है कि क्या होने वाला है. दैट इज फ्रॉम बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन. तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ. एंड कभी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट की बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है, जैसे डेरिवेटिव्स का अलग होता है, कैश मार्केट का अलग होता है, कमोडिटीज का अलग होता है, करेंसीज का अलग होता है. तो उस हिसाब से मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ. Right. But Arish, if like a person like me who has a very limited knowledge of technicals want to build a position, so what all I need to look at before building a position? And like you talked about accumulation, so there are phases, right? So how we can like distribution is happening, accumulation is happening, the stock is in this stage, that stage. So how we can check and benefit from that? So you can check accumulation and distribution from the volumes, right? And second, on which side to participate, you have to understand the trend up है कि down है, सबसे पहले वो देखना है. और you can use trend lines for that. Trend lines basic एक तरीका है जिससे you can understand the trend. और फिर you can use moving averages, उससे भी एक आइडिया लग जाएगा. सब बेसिक चीजें हैं which actually work. एंड आपको थोड़ा सा उसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है रिफाइन करना पड़े, असेट क्लास के हिसाब से रिफाइन करना पड़ेगा. बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रेंड, यूज ट्रेंड लाइंस, यूज क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, ट्रायंगल पैटर्न्स हो गया, ये पेनेंट हो गया, वेज हो गया, फ्लैग पैटर्न हो गया. काफी सारे ऐसे पैटर्न्स हैं. वो सब आप यूज करके भी पैसा बना सकते हो. बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हो सकता है. All right. So Kanan, you go next, and then Vajpayee, if have you have any question, you can also ask. Yeah, Kanan. Thanks, Prince Bhai. So, Arush, I would just like to ask, like, since we are talking about indicators, oscillators, etc., have you documented this journey anywhere, like where from our listeners can benefit? And if you have documented this journey or maybe spoken about it anywhere, the kind of trends that you are currently looking at or what you have generally looked at in the past and have worked for you? Uh, Not exactly, but I have few YouTube videos of mine wherein I had discussed about at times of Russia-Ukraine war. I had made a video, and in 2020 bottom, in March 2020, I had predicted the bottom. I had made video at that time, and I have certain conversations with Trinker and other platforms. So yeah. That's great. That's great. So, Arush, आप ये full time trading में हो आप? Yes. And any kind of educational platform that you have? I don't have any educational platforms, but people who try approach me to learn things. I try to conduct certain sessions for them. Okay. I'm Okay, planning great. to conduct one session in February right now, Feb. So as of now, my schedule is completely booked till Looking Feb. forward. So planning something. Looking forward. Looking forward. तो आप मतलब मतलब full day your job is as a trader. You earn your bread and butter through trading, and then you manage people's money as well. So I have different operations and I'm a full-time stock market professional. So my complete, yeah. तो आरुष एक चीज आप मेरे को प्लीज बताओ जैसे यू वुड हैव हर्ड नितिन Hmm. कामत राइट नितिन कामत ऑफ Hmm. जेरोधा वो कहते हैं कि मतलब देयर जस्ट लेस देन 1% ट्रेडर हु मेक मोर देन एक्टिव ट्रेडर्स हु मेक मोर देन एफडी रिटर्न्स इन अ पीरियड ऑफ 3+ Hmm. years. तो मतलब इसमें कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए ऑफ कोर्स लाइक वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कीपिंग ऑन लर्निंग और उसके बाद हमने ये भी बोला कि आपको इमोशनल स्ट्रेंथ बनानी बहुत जरूरी है. सो हो सकता है ये 99% जो लोग नहीं कमा पाते एफडी रिटर्न से ज्यादा वो उसमें बहुत बड़ा चंक एक इमोशनली वीकर सेट भी हो सकता है.
बट बाकी आपको क्या रीजन लग सकता है कि क्या ऐसा होता है कि ट्रेडर्स नहीं कमा पाते, और कैसे उनको प्रॉफिटेबल अगर आगे बनना है तो कैसे बनना चाहिए? राइट, सबसे पहले तो टाइम देना चाहिए। कोई भी चीज को टाइम देंगे तो ही बात बनेगी। और मैं अगर इवन सपोज मैंने हार्वर्ड से भी पढ़ाई कर लिया या कहीं से भी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर लिया, दैट डजंट गारंटी सक्सेस टू मी इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट राइट। नॉलेज, it's about राइट। control, it's about discipline, so it's about that. And और ऐसा भी देखा गया है कि if you are very educated ना, and अगर you're from a very big position, or you have a big post at some company, or you're very qualified है कुछ भी, so those people actually fail more in market. उसका रीजन ये है बिकॉज उसको थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा ईगो होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक्चुअली टॉकिंग, दैट इज ट्रू। हम्म। लोगों को ऐसा होता है कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो वो लोग एक्चुअली अपनी गलती को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। वो ऐसा कहते हैं मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, एंड दे मोर मिस्टेक्स राइट। बिकॉज ऑफ दैट। और तो कुछ लोग तो इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और वो उसी स्पाइरल में घूमते रहते हैं। फिर और स्टॉक मार्केट में इतने रैंडम वेरिएबल्स है ना, रोज नया नया कुछ आता है। कभी कोविड आ जाएगा, कभी रशिया यूक्रेन वॉर आ जाएगा, कभी कुछ वॉलेटिलिटी आ जाएगी। तो देर आर सो मेनी वेरिएबल्स। तो हर चीज सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए कि फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, डेरिवेटिव का नॉलेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, न्यूज़ का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, कैसे न्यूज़ इम्पैक्ट कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में, सेंट्रल बैंकर्स क्या कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर फंड फ्लो का नॉलेज होना चाहिए। इतनी सारी चीजें हैं, मोटा मोटा। और छोटी छोटी माइन्यूट चीजें तो बहुत सारी है। तो देयर इज नो थंब रूल इन स्टॉक मार्केट, जैसे बाकी सब फील्ड में होता है कि ये थंब रूल है, ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है, तो काम हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में नहीं चलता है। सो पीपल ट्राई टू रेप्लिकेट दैट काइंड ऑफ थिंग कि स्टॉक मार्केट में ऐसा करते तो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा समय देना ही पड़ता है। 3 5 साल 10 साल देंगे ना, तो पता चलेगा कि इस सिचुएशन में ऐसा हुआ था, और एक सिचुएशन में भी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो सब समझनी जरूरी है। You should have राइट। knowledge, you should have skill, you should have discipline, you should have control, you should be able to execute, and you should not be stuck in fear and greed. ये सब करने के बाद you can be a good trader. So it takes a lot of effort for that. So वंडरफुल। Arush, like you say, key volume first, price later, right? So basically, how to identify smart money movement in stocks, basically investor, and he or she wants to build a position. So on the basis of seeing volumes, how one can identify a good bet? Look, volumes actually describe, or they actually say more about what institutions are trying to do. So, first of all, you can scan the volumes, and then you can use price action to support that. And if both are going hand in hand and you can see confluence, then that would result in great trades. Like it happened in PB FinTech, it happened in Fino Payment, और बहुत सारे स्टॉक्स में होता रहता है। रोज आज रिलायंस में इतना सारा हुआ, मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स हुआ। सो एंड रिलायंस वाज +3% टुडे, which is a fat tail even compared to normal days. Like it doesn't move 3% every day, so it's more than average move. So uh, volumes plus technical analysis can help you identify all these trades. Right. So Vajpayee ji, Karan, you can ask your questions next. तो आरुष जी, आपने जैसे बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और काफी स्टडी भी की, तो आपने जो भी मोटिवेशन दिया है शायद इससे लोग मोटिवेट भी होंगे। बट मैं ये जानना चाहता था कि चूंकि आपने इतना एक्सपीरियंस किया, एक्चुअली ये बात तो सही है कि स्वयं एक्सपीरियंस किए बिना आदमी बिल्कुल। आगे नहीं बढ़ सकता है। बट मोटिवेशन के लिए और कुछ अगर बेसिक्स से कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स अगर आप बता सकें, जैसे कि चार्ट पर जाकर के वो कैंडल स्टिक तो मान लिया लगी रहती हैं, तो किस प्रकार के इनिशियल मूविंग एवरेज को यूज करे, और इसके अलावा और कौन से 2 3 बेसिक इंडिकेटर हैं जिनको वो इस्तेमाल करके प्राइमरी ट्रेंड को समझ सकता है कि वेदर ट्रेंड इज अप और डाउन। अगर ऐसा कुछ आप बता सकें तो शायद सब लोगों को कुछ इससे बिल,
आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मदद मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा कुछ आप बता सकें, क्योंकि देखिए आपने तो काफी अच्छी स्टडी की, बहुत डीप की, और आपकी प्रेरणा से मैं कहूंगा सब लोगों की, वो लोग भी पढ़ें, बट चूंकि जब आपको बुलाया गया और आपका इतना एक्सपीरियंस होगा, शार्ट में कुछ आप बता सकें तो ज्यादा बिल्कुल अच्छा जी, रहता। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड है ना, आप ट्रेंड लाइन से तय कर सकते हैं। कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, हायर हाई, हायर लो बना रहा है, व्हिच इज़ द स्टैंडर्ड डेफिनिशन ऑफ अ ट्रेंड बाय डाउ थियरी, तो उस हिसाब से आप पहले तो ट्रेंड ढूँढ सकते हैं और ट्रेंड लाइन का यूज़ करिए। ट्रेंड लाइन कितनी आसान है, उसमें आपको क्या करना है कि जो स्विंग लो है, उसको कनेक्ट करना है, और जो स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि माय ट्रेंड इज स्ट्रांग एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इन दैट ट्रेंड। तो ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है, जैसे पेटीएम की बात कर लेते हैं। अब पेटीएम में आप ऊपर की ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होगी, और वो कभी भी उस लाइन को ब्रेकआउट नहीं देता, वो नीचे ही जाता रहता है, तो वो एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग स्टॉक हो गया। और दूसरी साइड फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए, टाटा एलेक्सी इस साल बहुत बढ़ा, उसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए तो वो अपवर्ड स्लोपिंग है। वो एंगल क्या है ट्रेंड का, वो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड बन रहा है, तो आप उसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट करने का ट्राई करिए। कितने सारे, कोल इंडिया ने इस साल अच्छा परफॉर्म किया, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स देखिए क्या कमाल का काम किया है। और पीएसयू बैंकिंग मैंने पोस्ट भी बहुत पहले डाला था, वहां से सारे स्टॉक अभी 20 से 40% ऊपर है। और उसमें आप एक चीज देखना कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गए सारे स्टॉक। पीएनबी कितने साल के हाई लगा रहे हैं, मतलब इट्स एट मल्टी ईयर हाई। और उसमें जो मूविंग एवरेज है, जैसे जैसे 200 डे मूविंग एवरेज से भी आप अपना काम चला सकते हैं, विच इज बेसिक स्ट्रैटेजी बट इट वर्क्स। तो जो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट्स इन अप ट्रेंड। सो 200 दिन साल में 365 डेज होते हैं, 200 वर्किंग डे होते हैं। तो 200 दिन में अगर कोई स्टॉक ऊपर चल रहा है, मतलब कि उसकी जो एवरेज है उसके ऊपर ही चल रहा है, मतलब देयर इज समथिंग गुड इन द स्टॉक, देयर इज सम इंटरेस्ट इन द स्टॉक्स, एंड बिग हैंड्स आर अक्यूमुलेटिंग इट, दे आर सपोर्टिंग इट, हेंस द स्टॉक इज अप, फाइनेंशियल्स भी अच्छे ही है। तो वो स्टॉक को आप बाय करो। जो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, उसको बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे पेटीएम का देख लो, वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही होगा। फिर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक देखो, यू कैन यूज अदर मूविंग एवरेजेस लाइक 20 रिप्रेजेंट्स 1 मंथ, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 20 वर्किंग डे होते हैं, इसलिए 20 यूज कर सकते हैं। फॉर 1 वीक यू कैन डू 5 डे मूविंग एवरेज विच रिप्रेजेंट्स 1 वीक, राइट। तो 5 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करो। फिर 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज यूज करो, यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी। फिर 3 महीने का यूज करना है तो यू कैन यूज 60 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज। और आधे साल का करना है तो 100 डे मूविंग एवरेज यूज करो। यू कैन यूज क्रॉसओवर ऑफ मूविंग एवरेजेस टू find trends or crossovers or new trades, which also works. These are some basic strategies, although they might be little outdated, but if you do little changes as per your risk appetite, as per the volatility of the asset, and as per your experience, then it can do wonders for you. उसको फिर आप बेसिक प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करो, और फिर क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स तो कोई बात ही नहीं करता है, पर दोज आल्सो डू वेरी वेल। ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल पैटर्न मैं बहुत ट्रेडिंग करता था पहले फ्लैट पैटर्न के ऊपर, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न्स, क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स, क्योंकि जो फ्लैग पैटर्न होता है वो एकदम मोमेंटम बताता है। और अगर जिसको पता है, उसमें एक पोल होता है, फिर एक फ्लैग बनता है, फ्लैग से ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक एकदम भागता है। मैं काइटेक्स गारमेंट्स करके एक स्टॉक था जो बहुत मल्टी बैगर बना, 10x जितना, 10x 20x ऊपर गया, वो फ्लैग पैटर्न में ही ऊपर चलता था, मैं उसको ट्रेड करता था, क्या रिटर्न देता था, 50-60% रिटर्न देता था। सो आज की तारीख में काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे प्राइस एक्शन सबने फेमस कर दिया है, पर बाकी सब चीजों को भूल गए, जैसे क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स हो गए, ट्रायंगल पैटर्न्स, पेनेंट्स, वेज, फिर फ्लैग पैटर्न, और हेड एंड शोल्डर हो गया। काफी सारे पैटर्न्स है, वो आप यूज करो, बहुत फिनोमिनल रिटर्न मिलता है। मैंने नैस्डैक का जो करेक्शन था ना, उसमें मैंने हेड एंड शोल्डर बताया था मेरे हैंडल पे कि यहाँ पे इसका टॉप बनने वाला है, इसका करेक्शन आएगा, और वो हुआ।
कितने लोग कह रहे थे कि आईटी में करेक्शन आएगा, मैंने चार्ट पैटर्न के साथ बताया। और मैंने 2021 में सेंसेक्स और निफ्टी का टारगेट बोल दिया था। ऑन 24th March 2020, व्हेन मार्केट हैड मेड अ बॉटम, मैंने वहां पे बोला था कि स्टॉक मार्केट का बॉटम बन गया है एंड माय टारगेट इज 14,000। और दिवाली से 2-3 महीना पहले मैंने उनको चार्ट पैटर्न के साथ, जो मेरा अभी ट्वीट है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया था, उसके हिसाब से मैंने टारगेट डिराइव किए थे। तो वो सब कुछ है और एंड इट एक्चुअली वर्क्स। सो यू कैन कंबाइन दैट विद वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स आपको इतना अच्छा आइडिया देगा। जैसे मैं, आप ये सारे स्टार्टअप स्टॉक देखो, सारे स्टॉक्स में कितना अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। तो ये बता रहा है कि देयर इज सम accumulation हैपनिंग। और उसके साथ कितनी सारी न्यूज भी आ रही है अभी कि देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लॉक डील्स हैपनिंग, नाइका, जोमैटो, पीपी फिनटेक। सो दैट इज एक्चुअली शोइंग कि वहां पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बन रहा है। ऊपर के भाव में इंटरेस्ट नहीं था, पर इस भाव में जरूर बन रहा है। तो एंड यू नो व्हाट डज वॉल्यूम से, वॉल्यूम्स एक्चुअली से कि इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली accumulating बिफोर द ब्रेकआउट। तो चार्ट जो भी टेक्निकल एनालिस्ट है वो तो पहले बाद में देखते हैं कि ब्रेकआउट आ रहा है, पर जो इंस्टीट्यूशंस है दे एक्चुअली क्रिएट द ब्रेकआउट। तो वो लोग पहले अक्यूमुलेट करते हैं, फिर सबको चार्ट्स पे दिखता है। तो आप पहले वॉल्यूम पे भी बहुत ध्यान दो। इसमें वॉल्यूम पे ध्यान देना बहुत आसान है। सपोज किसी का एवरेज वॉल्यूम 1 लाख है और अभी उसका वॉल्यूम सपोज 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो रहा है। सो दीज आर स्कैनर्स। मैंने अपने ये टाइमलाइन पे भी अभी पब्लिश किया एक वॉल्यूम स्कैनर, जिसमें आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है। सो दीज आर एक्चुअली फुटप्रिंट्स of what institutions are doing, and you can pick certain pockets where you see good volumes, and वो आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम्स बहुत ड्राई अप हो जाते हैं, और उसी के हिसाब से हमें एक थियरी अभी आजकल बहुत फेमस हो रही है, बीसीपी थियरी। उसमें हम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के साथ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी आ जाता है। और जब वॉल्यूम ड्राई अप हो जाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है स्टॉक में, तो वहां पे इंस्टीट्यूशंस घुसते हैं। जैसे आपने काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स की बात सुनी होगी, जैसे विजय केडिया है, या काफी अच्छे राकेश झुनझुनवाला है, रमेश दामानी है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, दे एक्चुअली ट्राई टू डिस्कवर द हिडन स्टॉक्स। जैसे आशीष कचोलिया है, ही ट्राइज टू फाइंड अनडिस्कवर्ड स्टॉक्स, हिडन जेम्स। क्यों? क्योंकि वहां पे वैल्यू डिस्कवर नहीं हुई है। तो जब कोई स्टॉक एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ, तो कोई स्टॉक अगर कॉन्ट्रैक्शन में आ गया है, पैटर्न कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, या वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, या वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गए, तो वहां पे इंटरेस्ट चला गया है। और फिर बाद में जब वहां पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट डिस्कवर होता है, तो वो स्टॉक फट जाते हैं एकदम। कितने सारे पीसी ज्वेलर्स ऑलमोस्ट 50-100-150% चला गया ऊपर। तो वो स्टॉक में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था। किसी से पूछ लो, पीसी ज्वेलर तो ये ठीक कचरा स्टॉक है। एक दो बार तो पूछे कौन सा स्टॉक, फिर बाद में पीसी ज्वेलर्स, तो कोई पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। एंड व्हेन इंस्टीट्यूशन एक्चुअली स्टार्ट्स institutional comes back to those counters, those stocks actually blast. So a lot of stocks actually do a breakout of 10 years, एंड वहां पे जो वॉल्यूम्स आते हैं, तो वो स्टॉक बहुत वहां से भी चलते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द विच यू कैन कीप इन माइंड, और you try to identify that, and I'm sure that you'll make multi-bagger returns over there. So, Arush, like, do we have some screener? Just one screener you told you have posted over your timeline. We'll see that. But again, is there any screener to find out कि कहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, और वी हैव टू गो एंड मैन्युअली check the stocks and their volumes and find out how you go about it? Look, I have actually published it on my timeline. मेरे ट्विटर पे अभी एक हफ्ते ही हुआ है इसको मैंने पब्लिश किया है स्क्रीनर। तो वहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट चाहिए कि मेरे को कोई ढूंढ के दे दे, तो स्क्रीनर बता देगा। अदरवाइज आप मैन्युअली ढूंढो तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप मैन्युअली कुछ भी करते हो तो आपका एक्सपर्टाइज उसमें बहुत अच्छा आता है। तो यू कैन गो दैट वे ऑल्सो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। Right, right. So before coming to Karan, one very important thing like sell strategy क्या रहती है, because that is very difficult for long term investor as well as for traders and I mean जो भी है sell strategy सबको मतलब थोड़ा डाइसी रहता है, उसका क्या सही रहता है? सेल्स स्ट्रैटेजी, सेल्स स्ट्रैटेजी, सेल्स Right. स्ट्रैटेजी देखो, मैंने जैसा पहले बोला कि कोई थंब रूल नहीं है।
अभी हर एक का कोई अलग अलग, कोई हो सकता है ट्रेंड लाइन यूज करे, कोई हो सकता है ईएमए यूज करे, कोई हो सकता है इलियट वेव यूज करे, कोई नियो वेव यूज कर सकता है, कोई सुपर ट्रेंड यूज कर सकता है। तो सबका अपना अपना कंफर्ट है। और फंडामेंटल एनालिस्ट होंगे वो कहेंगे अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सपोज कुछ लग रहा है तो हम एग्जिट कर देंगे। कोई कहेगा कि अन अन नॉन कोर बिजनेस में अगर शिफ्ट कर रहा है कोई, जैसे कोई बिजनेस, जैसे मिस्टर विजय केडिया सेज दैट अतुल लिमिटेड ऑटो बनाती थी, फिर उसने कुछ कोई और कंपनी चालू कर दी। फिर ये कितनी सारी कंपनी थी, डीएलए 2003 से 2008 के बीच में कितनी सारी कंपनीज थी। डीएलएफ है, सत्यम बहुत क्लासिक एग्जांपल है, जो कंप्यूटर का काम करती थी रियल एस्टेट में शिफ्ट हो गई। तो अगर नॉन कोर बिजनेस में जा रहे हैं तो एफिशिएंसी कम होगी और फिर बाद में लॉसेस उसमें जनरेट होगा। जैसे काफ़ी सारी कंपनीज हैं, दोज कंपनीज हैव एक्चुअली अर्न बैड नेम, कि वो हेलीकॉप्टर खरीद लेती है फिर स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने लगती है, और यूबीएल किधर किधर इन्वेस्ट करती थी। तो फिर क्या होता है कि एफिशिएंसी नहीं आती बिजनेस की और इंटरेस्ट डाइवर्ट होता है। बेस्ट यू डोंट गेट द बेस्ट बैंग फॉर योर बक्स, एंड फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो फंडामेंटल वो वेरिएबल हो गए, तो हर एक की अपनी अपने तरीके हो सकते हैं। आई यूज मोमेंटम स्ट्रेटजीज टू फाइंड माई एग्जिट, बट स्टिल देयर इज नो थंब रूल फॉर दैट। Karan, you can unmute and ask your question. Good evening, everyone. Good evening, Prince sir, Vakpai sir, Arush sir. So he basically Arush sir covered most of it. जो मैं speaker पे जिसलिए आया था, mostly he explained it really well. My question was that कि मतलब basically why, because I am Arush sir, I am a discretionary trader myself as well. So you covered it very well कि मतलब उसको वॉल्यूम्स के साथ देखोगे और वॉल्यूम्स के बाद एक रीटेस्ट या इनसाइड कैंडल के बाद लाइक ऑन अ डेली बेसिस इफ इट ब्रेक्स आउट then you can you get the confirmations. Like I trade on patterns all day, every week. So that's a wonderful thing that you explained. And yeah, so that's exactly what I wanted to tell people also, and I wanted to hear also for my conviction as well, Right. to get it stronger on a Okay. everyday on an everyday basis. Thank you, Karan. So, Arush, like when you identify pattern and check for volumes, and also at times that could be a, I mean, what we say, real breakout, and at times the breakout fails. So, is there any way to identify that, or you put a strict stop loss so as to tackle such situations? Uh, Look, the rule number one is that there are rules in the stock market, and the rule number two is that there is no rule number one. So there is no thumb rule in the stock market. So कुछ ऐसा नहीं है कि एक चीज हमेशा वर्क करेगी, बट जनरलाइज वे में अगर हम बात करें तो अ ब्रेकआउट accompanied by good volumes is actually a reflection that institutions are participating in that breakout. And second thing is that if there's a breakout and there's no good volume participation, that means that people are not interested in that. So probably that wouldn't have a lot of steam left, and it will fizzle out somewhere down the line. So this is the general idea, but as I said, there is no thumb rule. Different things can happen at different times, because just look at the current market, which is very different. If you're following a textbook theory, then you might have failed in 2020, 21, 22, because this kind of a market hasn't been seen. We had seen India VIX at 86, which hadn't been seen, which we didn't see in 2008 also. And we saw crude oil in negative territory, so that also never happened in the financial market. So कुछ थंब रूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट मैंने बता दिया कि पास्ट में इस तरीके से वर्क किया है तो प्रोबेबली आगे भी कर सकता है, विच यू कैन टेक एज रेफरेंस पॉइंट। Right, great. So, Arush, let's talk a little bit about commodity currency market things. So, what all you do, and what all things need to be, what we say, tracked, and how we can benefit from doing that. राइट, बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पे हमारे ट्विटर कम्युनिटी में लोग ज़्यादातर इक्विटीज़ की बात करते हैं, पर करेंसीज कमोडिटीज़ भी बहुत अच्छी मार्केट है। जैसे अभी सबसे बड़ा मूव अगर देखो तो दैट हैपेंड इन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। Britain was the first country to actually pivot from
हॉकिश स्टांस टू डविश स्टांस, मतलब यूएस बोल रहा था कि हम एग्रेसिवली रेट हाइक करेंगे, पर यूके ने ऐसा बोला कि हम एक्चुअली अभी बॉन्ड बाइंग चालू कर रहे हैं वापस, जो उसने 2020-21 में पूरी दुनिया ने सबने करी। तो अब वो पहली कंट्री थी जिसने बोला हम बॉन्ड बाइंग चालू कर रहे हैं, और वहां से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड रॉकेट हो गया एकदम। ऑलमोस्ट उसमें 5 to 10% का मूव आ गया ऑलमोस्ट। तो तो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट, करेंसी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है इतना बड़ा मूव। एंड और यू नो इन करेंसी इफ यू अर्न 3-4%, सो दैट एक्चुअली डबल्स योर मनी, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि इक्विटी फ्यूचर्स में यू हैव टू पे upfront margin of 25%. So if you get a move of 25%, your money actually doubles. वही करेंसी में you have to pay of margin of 4%, in Great Britain pound और USD में around 2%। तो अगर 4% का मूव आपको पाउंड में मिलता है, मतलब आपका पैसा डबल हो जाता है। तो ऐसा मूव पाउंड में देखने को मिला अभी थोड़े महीनों में, जब एक्चुअली 15,500 निफ्टी था और 16-17 हज़ार जब चल रहा था, तो पाउंड सबसे पहले भागना चालू हुआ। और इतना बढ़ गया, मोर देन 5%, 6-7% बढ़ गया। मेरे को एग्जैक्टली परसेंटेज याद नहीं है, बट इट गिव रिटर्न ऑफ मोर देन 100-200% इन अ शॉर्ट टाइम। तो लोग इक्विटी के पीछे इतना भागते रहते, पर करेंसीज में इतने बड़े बड़े मूव हो रहे हैं। अभी डॉलर देख लो, डॉलर वॉज इन सेक्युलर बुल मार्केट सिंस दिस अक्टूबर 2021, जब से फेड ने बोला कि वी आर गोइंग टू हैव अ हॉकिश स्टांस, हम एग्रेसिवली रेट हाइक करेंगे। तो इक्विटी में सबको नेगेटिव रिटर्न मिलता था, बट डॉलर वाज एक्चुअली एन एसेट क्लास व्हिच वाज गोइंग अप, कंटिन्यूअसली गोइंग अप। सो इफ यू वुड हैव hedged your portfolio, wouldn't have you saved some money over there? Like, you might have been losing in equities, but you could have been, making good money in dollar, राइट। और दूसरा, यू कैन ऑल्सो शॉर्ट सेल। तो जापानीज येन भी बहुत गिर गया, दो जापानीज येन यूरो वेंट टू एक्चुअली मल्टी ईयर लोज, मतलब 5-10 साल के लो पे चले गए ये सारे करेंसीज। एंड इतना उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब हर दिन उठो हर दिन नीचे, हर दिन उठो हर दिन नीचे, इतना इतना क्लियर कट ट्रेंड है। समटाइम्स इन इक्विटी मार्केट्स हमको ऐसा लगता है कि एक हमको डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा, वी आर नॉट एबल टू राइड द ट्रेंड, और एक क्लियर कट ट्रेंड नहीं मिल रहा, पैसे कमाने की जगह नहीं मिल रही। वैसे ही करेंसी वाज एक्चुअली इन वेरी गुड ट्रेंड। आप चार्ट देखना जापानीज येन का, इट एक्चुअली ड्रिफ्टेड डाउन वन वे। और डॉलर कितने सारे लोग ट्रैक करते हैं, इट एक्चुअली वेंट अप एवरी डे, हर दिन देखो तो डॉलर ऊपर जा रहा है। तो लोगों को अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, हम जो देखते हैं रोज इक्विटी मार्केट, उससे बाहर निकलना, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है। और इवन वी सॉ गुड राइज इन क्रूड ऑयल। तो जब सबको सबके पोर्टफोलियो टैंक कर गए ऑन 24th of March, व्हेन रशिया डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, अपना निफ्टी 500 से ज़्यादा पॉइंट डाउन था, और बैंक निफ्टी 1,000-2,000 पॉइंट नीचे था। मीनवाइल डॉलर तो आसमान छू रहा था, इट वेंट अप टू $125, फ्रॉम $60-70 टू $125 चला गया। नेचुरल गैस भी बहुत बढ़ गया उस वक्त, रोज नेचुरल गैस बढ़ता था, एक एक दिन में 10 से 25% बढ़ रहा है। और फिर जैसे मैंने बोला कि इतना जब बढ़ता है ना इन फ्यूचर, यू एक्चुअली डबल योर मनी। तो दीज आर सम अमेजिंग हेज फॉर योर पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं है कि इक्विटी से ही पैसा कमाना है, दूसरी जगह भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है एक्चुअली विच कैन लिमिट योर लॉसेस। अगर पैसे बन भी नहीं रहे, तो हो सकता है शायद लॉसेस कम हो जाए। डॉलर में पार्टिसिपेट किया होता अगर आपने, तो क्रूड ऑयल में किया होता, नेचुरल गैस में किया होता। एंड ये गोल्ड ने इस बार एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं किया, अदरवाइज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस गोल्ड ऑल्सो डज वेल। सो इट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड अ सेफ हेवन। 2008 में उसने बहुत अच्छा किया था, 2020 में अच्छा किया था, अभी नहीं कर रहा बिकॉज डॉलर इंडेक्स इज गोइंग अप एंड इट हैज़ नेगेटिव कोरिलेशन विद गोल्ड। तो इसलिए इस बार गोल्ड ने अच्छा नहीं किया, अदरवाइज गोल्ड भी आपको बहुत अच्छा हेज देता है। तो ये सारे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है विच एक्चुअली प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो। So you don't need to go to some other person, you can do it yourself, and it can help you make a lot of money. So these are some of the opportunities which I think are very good and everybody must explore. And it will also teach you
about the Right. volatility of different asset classes. Currency की volatility अलग है, commodity की अलग है, और equity की अलग है. Right, great. So, guys, I can be very sure like you people are liking our session. So please check out our handle, and all the relevant information is available over handles as well. And if your frequency match with the knowledge, do follow us, so that that gives the necessary motivation to bring more learned people to this forum. And I have pinned my YouTube channel link, so all the podcasts which we do are placed over that YouTube channel, so that you can revisit at any point in time. So Arush, when it comes to momentum investing, so what is your view, how you see it? And also there are algorithms or systems in place, so how individuals can benefit from I mean, what we say, taking subscription of those, or how they can go about it? Um, Look, I think you can yourself do momentum investing if you understand technicals. So you can yourself do that. Breakouts जितने आ रहे हैं तो उसमें participate करो आप, और मैंने volumes अच्छे आ रहे हैं तो participate करो, which is actually adding fuel to the fire. So you can benefit from that. और अगर अगर गाइडेंस चाहिए तो I also have a group, वो भी ज्वाइन कर सकते हो. No compulsions as such, but mainly concentrate on momentum strategies, which you can also find on Google. And अच्छा है, मतलब it works, actually it works. So काफी सारी studies हैं which say that momentum strategies give you an alpha, and it gives you an outperformance. So that is possible. Right, great. Karan, I'll come to you after this question. Like when it comes to volume, so the float of a company, does it have any impact as such? Sorry, come again. The float, हाँ हाँ. because in low Hmm. float, yeah. Got it. So do you see any correlation with volumes? And I mean, on the basis of charts, we have to read such cases separately, a good float and a low float. Look, actually, stocks which have low float means they have less outstanding shares in the market. All the shares have been accumulated by insiders, promoters, institutions, etc. So, so these companies, as they have less number of shares, once there's some institutional interest in that counter, that stock simply runs away because all the buyers are now willing to sell at the higher price. So as the new participants come in, they chase the price, and that stocks just flies away. So so these can give you some spikes, but for momentum to continue, you need liquidity. So that would give you a good rush of money, and that can lead to sustainable momentum. Otherwise, lack of liquidity, which is equivalent to low float, means a spike in stock price, but that wouldn't be sustainable. Right. Yeah, Karan, you can ask now. Anji. So Aru sir, I just want to ask you this one thing because there are quite a few people listening to us right now. So basically, let's say a flag and pole pattern breakout, a symmetrical triangle breakout, or falling wedge or rising wedge, however you take the trade. So basically, if it's volume based also, and it gets to a retest, and it breaks the level on the downside or the upside on that retest, तो आप सेफ स्टॉप लॉस रखने का recommend करते हो लोगों को, या you basically just get out of the position and just re-enter whenever it crosses it again? So I just want to know for the people and for myself as Right. well. So as I said that I'm a discretionary trader, और मेरे कोई रूल्स नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा कि जनरल जो स्ट्रक्चर्ड रूल्स है वो क्या है. फर्स्ट, मतलब वेज ऑफ ट्रेडिंग इट बताता हूँ मैं. एक पहला तरीका है कि जब ब्रेकआउट है तब एंटर कर लो. एंड इसका एडवांटेज ये है क्या कि यू वुडंट मिस स्टॉक्स. कभी कभी कोई स्टॉक बहुत भाग जाता है तो यू वुडंट मिस दो स्टॉक्स बिकॉज यू ऑलवेज पार्टिसिपेट. इसका डाउनसाइड ये है कि देयर कैन बी सम फेक ब्रेकआउट्स, वहाँ पे आप फंस सकते हो. ये हो गया फर्स्ट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग. सेकंड स्टाइल हो गया एज यू सेड कि रिट्रेसमेंट का वेट करो. इट कम्स टू द टेस्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रेकआउट.
वहां से बाय करो और फिर राइड करो। तो इसमें फायदा ये है कि यू गेट स्मॉलर स्टॉप लॉस और अच्छा अपसाइड मिल सकता है। पर डाउनसाइड ये है कि यू कैन मिस अ लॉट ऑफ स्टॉक्स। जो स्टॉक ऊपर गए कभी नीचे ही नहीं आए, ऐसे स्टॉक्स भी हो सकते हैं। तो इसका डाउनसाइड ये है। और तीसरा हो सकता है कि यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट स्टॉक्स ऑन गैप्स। तो गैप्स में चल रहा है, बड़ी तेजी चल रही है, धूमधाम तेजी चल रही है। एंड यू कैन गेट इन द बस एंड जब तक मोमेंटम चल रहा है तब तक उसको राइड करो एंड यू कैन गेट आउट। बट गैप्स की भी फिर एक अलग से स्ट्रैटेजीज रहती है और अलग से उसके रूल्स रहते हैं। तो you have to maintain your stop loss as per your risk appetite and you can ride the trend. So these are three styles of trading the breakouts and momentums. Thank you, thank you. ठीक है sir, perfect, thank you. Right. So, Manish, you can unmute and ask, and then we go to Aman. I'll listen for more time, sir, then I will ask. Okay. Aman, you can unmute and ask your question. Good evening, Prince. Good evening, Anusha. This is Aman here. I just have a small question. So the screener which you've provided us, half of the stocks have already been risen to minimum 20%. So how do we tackle that? And if not, if there is a new stocks, are we like supposed to understand what the price action is saying? Right. Good evening, Aman. So, uh, uh, in momentum, it happens. So, it's a part of volumes and momentums go hand in hand. And wherever you're trying to find momentum and wherever you're trying to find volumes, उसमें ऐसा होगा कि कई बार जब तक वॉल्यूम्स बिल्डअप होंगे स्टॉक थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो दैट्स अ गिवन थिंग इन द इक्वेशन। So, Bhaiya, how are we supposed to like understand when the momentum is about to start? So once the volumes are building up, which you can track manually. So at that time you can cross check with the price action, and if everything is going in confluence, then probably that's your stock. Bhaiya, I just have a last Hmm. question. So, for an example, Twitter handles में every now and then we keep saying this is a breakout stock, this is a breakout stock, इसमें momentum build हो रहा है, इसमें accumulation हो रहा है, ये वो. How to have a good system where you understand कि if I'm seeing 10 stocks, I should make sure that I'm trading in Hmm. one, and that one is a winner for me. Right. Right. So I just want to know how to have a grip on that psychology ki, just a tip jaise ki this is going to work out and I know this is going to be my short trade. Right. So मैं वही कहूँगा कि जैसे मैंने पहले बताया ना कि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है और साथ में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी आ रहा है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। शायद उसमें अच्छे चांसेस है बढ़ने के। तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अगर अच्छा आ रहा है, जो आज हमारा टॉपिक है, अगर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा आ रहा है तो वो एक थोड़ा इंडिकेशन है कि शायद हाँ इसमें बड़ा मूव आ सकता अच्छा, है, और वो and अक्सर होता है। भैया sorry, so this shall be a last one. जो स्क्रीनर आपने शेयर किया है, how frequently should we use that screener? Look, I'll quote it in other way. अभी मैंने सपोज कोई RSI की स्ट्रैटेजी है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई यूज इट। तो अगर मुझे उसमें इंट्राडे में कंफर्ट आ रहा है तो मैं उसको इंट्राडे में यूज करूंगा, मुझे डेली में आ रहा है तो डेली में भी करूंगा, वीकली में भी यूज करूंगा, मंथली में भी करूंगा अगर मेरे को कंफर्ट आ रहा है तो। सो इट्स अ पर्सनल थिंग, जितना कंफर्ट आ रहा है उस हिसाब से यू कैन यूज इट, बट द स्टैंडर्ड इज दैट यू कैन यूज इट ऑन डेली बेसिस at ठीक end है, understood EOD भैया, thank you studies, भैया. as EOD studies, end of the day. All right, understood भैया, thank you so much. So, तो Vishal, आरुष जी, जैसे आप जो वॉल्यूम की बात आप कर रहे हैं, तो ये आप मतलब आपका कहना है डेली बेसिस पे आप वॉल्यूम चेक करते रहे और वॉल्यूम जब एकदम से बढ़ना शुरू हो तो वहां पर उसको वॉच किया जाए। मैं जरा मंथली लेवल पर अगर आपसे जानना चाहता था कि मंथली लेवल पर अगर वॉल्यूम कंट्रक्शन चल रहा है या एक समय पे वॉल्यूम बढ़ा और अच्छे वॉल्यूम के बाद में फिर वो रिटेस्ट करता है कोई स्टॉक, कोई मतलब मैं एक स्टॉक का नाम भी लूंगा जो अगर आप चाहें तो उसके बारे में अगर बता सकें तो, जैसे शारदा क्रॉपकेम था। तो शारदा क्रॉपकेम में लास्ट ईयर मई 21 में एक हाईएस्ट वॉल्यूम बना मंथली बार में, वहां पर इसने 380 का हाई बनाया, देन इसने रिटेस्ट किया 340 के पास गया, अगेन 362 हुआ, फिर ये लगभग दिसंबर तक इसकी रेंज बनी रही 300 टू 350। Correct. और जनवरी के महीने में ऑल ऑफ सडन आप देखें इसका वॉल्यूम कई महीनों से ज्यादा हाईएस्ट पे हुआ और स्टॉक डबल हो गया वहां से Right. एक ही महीने में।
तो ऐसे स्टॉक को मैं देखिए मैंने तो मान लिया पकड़ा, लेकिन एक जो आम निवेशक है वो ऐसे स्टॉक को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करके होल्ड करे कि 6 मंथ तक स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं हुआ और इन जस्ट 1 मंथ वो डबल हो गया। राइट। आपने काफी अच्छा एग्जाम्पल पकड़ा। इवन मैंने देखा था कि शारदा क्रॉप में बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ था। सो देखिए इनिशियली जब उसमें पहली बार जब उसका बढ़ना चालू हुआ था तो उसमें अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आया था, तो आप उसको वहां से ही ट्रैक करना चालू कर सकते हो। और उसने फॉलो अप मूव भी दी है। ये आई थिंक रशिया यूक्रेन वक्त के टाइम की बात है ना? तब की बात है ना ये? नहीं, रशिया यूक्रेन वार के पहले जनवरी हाँ, में ही इसने डबल कर दिया था। करेक्ट करेक्ट। अप टू दिसंबर जो है, दिसंबर में जो फॉल आया था हाँ ना, हाँ हाँ, दिसंबर के महीने में एक नहीं, 20 दिसंबर को हमने एकदम से लो बनाया राइट। था, तो वहां पर इसने एक लो बना करके और वहां से रिवर्सल दिया। हालांकि इस बीच में हर महीने में इसका जो मूवमेंट था वो 300 से 340 पे सीमित रहा, 305, 340, 305, हाँ 340, हाँ, ऐसे लगभग 6 मंथ तक रहा। हम्म। और दिसंबर में वो 20 दिसंबर का जो लो बना उसके बाद फिर उसने बैक नहीं मारा। और जनवरी में हुआ क्या, इसके रिजल्ट हम्म, आए, तो जो रिजल्ट इसके थे काफी अच्छे थे, इंप्रेसिव रिजल्ट थे, उसकी वजह से एकाएक इसका, मैंने खाली इसलिए आपसे ये प्रश्न रखा कि देखिए वैसे मैं तो स्वयं अपने आप में करता रहता हूँ, क्योंकि जो हमारे और लिसनर्स हैं वॉल्यूम के ऊपर काफी बेस करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें इसी महीने में, जनवरी के महीने में ही हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ और जनवरी के महीने में ये डबल भी हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद जो इसका राइज हुआ वो इतना अधिक नहीं हुआ है। फिर जब ये गिरना शुरू हुआ तो फिर वहीं उसी रेट के लगभग आ गया, मतलब 400 के आसपास आ हम्म, गया। तो ये मेरा कहना था कि अगर मान लिया इतने हाईएस्ट वॉल्यूम के आधार पर किसी ने एंट्री कर ली मंथली चार्ट हम्म, पे, तो फिर उसके उठने के और निकलने का कैसे रास्ता निकालेगा आदमी, ये थोड़ा सा अगर आप बता सकते राइट। तो मैंने जैसा बोला कि इसने जब हाईएस्ट मंथली वॉल्यूम बनाया ना, उससे पहले भी कितनी बार वॉल्यूम आया देखिए। जब आई थिंक ये जैन की आप बात करें तो 21 जैन को ही बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया था इसमें। फिर अगले दिन इसका 24 जैन को बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। तो वहां से कंटिन्यूसली स्टॉक बढ़ा और 21 जैन को इसका प्राइस था 380। और थोड़े दिन में ऑलमोस्ट एक हफ्ते में इसका प्राइस ऑलमोस्ट 670 हो गया। तो पहली वॉल्यूम के बाद तो आपको फॉलो अप मिल ही रहा है, पर आप गाड़ी को थोड़ा सा लेट पकड़ोगे तो दिक्कत है ही हर जगह। सो यू मोमेंटम स्टडीज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दैट यू नीड टू ऑल्सो गेट आउट एट राइट टाइम एंड वॉल्यूम एक्चुअली कम बिफोर द ब्रेकआउट। तो मैंने आपको 21 बोला, तो वॉल्यूम पहले आ गई, ब्रेकआउट तब नहीं आया था, फिर अगले दिन ब्रेकआउट आया। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। हैं। तो आप उसको डेली में देखो, वीकली में देखो, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर टू गेट आउट एट गुड टाइम बिकॉज मोमेंटम स्ट्रेटजीज आर ऑल अबाउट फटाफट लो फटाफट बेचो। चलिए, थैंक यू आरुष। So, Vishal, you can unmute and ask your question. Yes, hi. Thanks for the opportunity. So, मेरा question ये है कि somebody who was more into fundamental and who's moving into technical, I mean learning technicals, and वो ये देखता है कि जो स्टार्टअप स्टॉक्स हैं, जैसे अभी आरुष बात कर रहे थे, वो ऑलरेडी प्राइस टू सेल्स में 12-13 पे ऑलरेडी अभी भी हैं। आई मीन काफ़ी कंसोलिडेट हुए हैं बट स्टिल अच्छे प्राइस टू सेल्स पे वो हैं। सो हाउ डू वी अप्रोच दीज स्टॉक्स, खासकर दीज न्यू स्टार्टअप स्टॉक्स? what you know what how do you approach these stocks basically, क्योंकि इनका डेटा भी हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, लाइक साल तक का ही है, जो अगर हम टेक्निकल हम इनको एनालाइज करें। सो राइट राइट। सो आई वुड से दैट एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स नॉट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर एक कोई फंडामेंटल एनालिस्ट सोचता कि मैं डीमार्ट खरीदूं कि नहीं खरीदूं, तो शायद फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं खरीदता, क्योंकि डीमार्ट हैज ऑलवेज बीन एक्सपेंसिव। और अगर फंडामेंटल एनालिस्ट सोचता कि मैं एशियन पेंट्स खरीदूं कि नहीं खरीदूं, तो दैट हैज ऑलवेज बीन एक्सपेंसिव। और अगर कोई यूएसए में फंडामेंटल एनालिस्ट है तो टेस्ला कभी नहीं खरीद पाता, गूगल कभी नहीं खरीद पाता, क्योंकि ये स्टॉक हमेशा एक्सपेंसिव रहे हैं। तो जैसे आपने अभी यहाँ पे बोला कि स्टार्टअप स्टॉक्स का वैल्यूएशन अभी शायद जस्टिफाइड नहीं है, तो फंडामेंटल और टेक्निकल जरूरी नहीं है, दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। तो अगर आपने टेक्निकल्स के बेसिस पे व्यू मिला लिया है और आपको फंडामेंटल में भी थोड़ा सा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो फिर आप उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं। तो आप जब
टेक स्टॉक्स को देख रहे हैं और स्टार्टअप स्टॉक्स को देख रहे हैं, तो आई थिंक दोज आर प्योर प्ले ऑन टेक्निकल्स, just like IPO stocks and cryptocurrency. All these things have less fundamental significance and more of technical significance. It's all about institutional interest, and it's all about demand and supply. अगर डिमांड आ रही है तो ये सब जो कल को इतने फालतू स्टॉक्स हुआ करते थे, जो सब क्रिटिसाइज करते थे स्टार्टअप स्टॉक्स को, आज वो चल रहे हैं. दोज आर डार्लिंग स्टॉक्स ऑफ द दलाल स्ट्रीट. तो इवन देखो तत्व चिंतन यूज्ड टू डू सो वेल, केमिकल स्टॉक्स दीपक नाइट्रेट ये सब यूज्ड टू डू सो वेल लास्ट ईयर. अब कोई पूछता भी नहीं है, फंडामेंटल अभी भी अच्छे हैं पर चलते नहीं है क्योंकि मे बी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट कम हो गया है, सेलिंग चालू हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है. सो बोथ थिंग्स कांट गो हैंड इन हैंड. टेक्निकल्स आर लीडिंग इंडिकेटर, फंडामेंटल्स आर लैगिंग इंडिकेटर. काइंड ऑफ ट्रेंड को फॉलो करना है, राइट? हाँ. अभी वहां पे बात है और सो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मतलब नहीं देखा जा सकता. या विल हैव टू वेट लाइक कपल ऑफ मोर इयर्स फॉर दिस न्यू टेक स्टॉक्स. अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है तो सपोज कोई आपको लगता है कि कोई बिजनेस मॉडल में अच्छा दम है एंड इट कैन डू वेल, तो वो आपका एक फंडामेंटल अप्रोच हो गया कि शायद मैं इसको 2-5 साल देख के देता हूँ. और इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव तो फिर बाद में आपको टेक्निकल्स के लिए उसमें देखना है कि कौन से बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं. अगर बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं देन यू कैन से ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स हाँ अभी इसको ले सकते हैं, ऐसा. राइट, राइट, मेक्स सेंस. थैंक यू. वेलकम. Yeah, Manish. आरुष, ये क्वेश्चन था, जब भी आप कोई स्टॉक में एंट्री लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपने कोई ऐसा कोई स्टॉप लॉस या टारगेट फिक्स किया हुआ है कि इसको इतने स्टॉप लॉस रखना है, या कुछ न्यूमेरिकल टारगेट रखा हुआ है, 2%, 3%, 20%, ऐसा कुछ? टारगेट मैं पहले डिसाइड करता था, अभी मैं डिसाइड नहीं करता हूँ. अगर मुझे लगता है कि मेरे टारगेट से ज़्यादा इसमें मोमेंटम लग रहा है, ऊपर जा सकता है और भी, तो मैं उसमें फिर पोजीशन बनाए रखता हूँ. और अगर मुझे लगता है मैंने जो टारगेट सेट किया था अभी उससे ज़्यादा इसमें उतना तक भी नहीं जा रहा है, पैटर्न्स इस तरीके के बन रहे हैं, तो आई गेट आउट अर्ली. तो यही एक एडवांटेज है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का कि आपके कोई रूल्स ही नहीं है. आपको जैसा स्क्रीन से आइडिया आता है, जैसा पैटर्न से आइडिया आता है, यू रिएक्ट इंस्टेंटली. तो इसका कोई रूल बुक नहीं बन सकता है. इसका आप इट्स योर वे ऑफ रिएक्शन, इट्स योर way of execution, which is actually unique in every case. Right. So, Arush, is there any, I mean, see, like if we have position at say 100 rupees and we keep stop loss as 95%, say 5%, or say 90, 10%. So, is there any, I know there is no, is there any, I mean, number which you keep as a stop loss? Yes, we can always keep some stop loss as standard stop loss because risk management should always be there. So, like in equities, you can keep stop loss of 5%, 7%, and in derivatives, you can keep stop loss of 10 to 20%. Some people also keep big stop loss like 20, 30% if their position sizing is less. So, these are some of the ways of dealing with it. और स्टॉप लॉस एक फिक्स स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज्यादा बेटर है? आपको क्या लगता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस के बाद डिसाइड होता है. पहले आपने कुछ स्टॉप लॉस डिसाइड किया, फिर बाद में आपके ट्रेंड में चल रहा है तो यू कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एंड बाय दैट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू लॉक इन योर प्रॉफिट एंड यू डोंट वांट टू गिव बैक योर प्रॉफिट्स. तब वी कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. एंड टेक्निकल्स के बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ डिसाइड किया कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, कुछ मूविंग एवरेज है या कुछ भी है, तो उसके बेसिस पे मैं काम करूंगा, तो उस हिसाब से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा. दैट इज डायनेमिक. वो जैसे जैसे वेरिएबल्स बदलते जाते हैं स्ट्रैटेजीज के और लेवल्स बदलते जाते हैं, आपका स्टॉप लॉस उस हिसाब से एडजस्ट होता रहता है. सो इन दिस वे यू आर एक्चुअली इन द ट्रेंड. Right. So, Arush, like, what do you see in Nifty chart at this point in time? Right. That's actually a $1 million question because
We are at point of breakout, but we are not seeing good participation from heavyweights like HDFC Bank, Kotak Bank. Today's rally was actually sponsored by Reliance, which was up 3%. So most of it came from Reliance, but all other stocks were little weak. So I don't see any good, a strong move right now as of today, which can change tomorrow and day after tomorrow also. But right now, I didn't find the breakout very encouraging. Look, the breakout which happened at 15,500 and 17,000, at that time the HDFC twins were participating. So that was really encouraging. And at one point in early June, July, IT stocks were also doing well. So right now, as the heavyweights are not doing well and there's no thrust in mid cap, small cap, and the patterns are not so attractive. So I don't see a lot of juice over there. Markets can continue with their uptrend, but I don't see juicy trend as of now. Although stock specific action is on. Right. So, Ahsan, you can unmute and ask your question. गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये जानना है कि जैसे अभी न्यूरेका एक स्टॉक है, वो लगातार गिरते जा रहा है, तो उसको वॉल्यूम के बेसिस पे कैसे एनालाइज करेंगे और कब उसको पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, अभी कोई स्टॉक गिर रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसी से पैसा बनाना है, दूसरे स्टॉक को पकड़ के भी बना सकते हैं। ऐसे स्टॉक को एक्चुअली बेचना चाहिए। अभी जो न्यूरेका का रेट ऑलमोस्ट 2100 हुआ करता था, आज वो ट्रेड कर रहा है 538। सो प्रोबेबली द फंडामेंटल्स हैव रियली चेंज फॉर बैड। एंड कुछ उसमें हो रहा है कि अभी स्टॉक इतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और काफ़ी सारी सेलिंग भी आ रही है। रोज़ इसमें वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, सो दैट शोज कि इंस्टीट्यूशंस अपना माल थोड़ा बेच रहे, दे आर सेलिंग देयर स्टॉक, दे आर ऑफलोडिंग देयर होल्डिंग्स इन दिस स्टॉक। सो मुझे वो ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं लगता। तो सर आपने जो पीबी फिनटेक उठाया था तो वो किस बेसिस पे, वो भी तो गिर ही रहा था स्टॉक, तो फिर वहां उसका कहाँ पे उठाया था आपने? पीबी फिनटेक इस तरीके से नहीं गिर रहा था, ये वर्टिकली फॉल हो रहा है। तो उस केस में कैसे किया था आपने, कुछ शेयर करेंगे? देखो, पीबी फिनटेक वाज एक्चुअली इन अ डार्क बॉक्स में था और कंसोलिडेशन पैटर्न में था 10 दिन से, और फिर बाद में उसमें वॉल्यूम्स आई, तो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। और ये तो क्या वर्टिकली गिर रहा है, अगर इसमें अच्छा वॉल्यूम्स आएगा, रिवर्सल आएगा टेक्निकल पैटर्न्स के साथ, तो इसमें भी हम कर सकते हैं ऐसा है। ओके सर, थैंक यू। Yeah. Right. So, Arush, we all know that risk management is very important. So, stop loss is one, but are there any other ways which you feel are important to risk management? And when it comes to trading and the derivatives, is there any way to diversify things? As I said, you can diversify in different asset classes. Like you can be in index options, you can be in stock options, you can be in stock futures, index futures, you can be in currencies, commodities. In this manner, you can diversify your risk. Right. So, we are almost done with most of the questions. So, Vajpayee ji, Karan, Manish, if you have any questions left, you may ask. In the other case, we'll wrap up for today, and would be great to have Arush sometime down the line. And last call for the attendees as well. Like, if you have any questions, kindly send in a request so we approve and you can ask your question. And if you are not able to send a request, then you can type in your question in the comments so that last 10 minutes with Arush. So any questions are welcome. तो प्रिंस जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, जो भी था मैंने आरुष जी से पूछा और उस पर उन्होंने अपना चार्ट पर देख के एनालाइज करके बताया भी। तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आरुष जी के आने से और उन्होंने जो अपना स्टोरी बताई है, जिस प्रकार से उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की है और इतनी स्टडी की है, तो ये हमारे जितने भी न्यू एंट्रीज हैं, जो न्यू एंट्री करने वाले हैं मार्केट में लास्ट 2 ईयर में या 3 ईयर में, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मतलब प्रेरणा का कार्य
करना चाहिए, उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए किस प्रकार से स्टडी करके मार्केट में आप एक अच्छी पोजीशन अपनी बना सकते हैं। तो और उसको मैंने पहले एक बार सुना था, 1 साल पहले लगभग, ट्रिंकर्स के उसमें स्पेसेस में आया करते थे, तो शायद पहले सबसे स्टार्टिंग ट्रिंकर के स्पेस से हुई थी, वो काफी लगातार स्पेस कर रहे थे, तो उस पर मैंने सुना था इनको, और काफी अच्छी तरीके से आप एनालिसिस करके अपना काम जो भी कर रहे हैं, इनके साथ जो भी लोग जुड़े होंगे निश्चित रूप से वो अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन चूंकि आपने इनको बुलाया और जो आपके फॉलोअर्स इस बीच में जो लिसनर्स आए हैं, तो इन सब लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपका अध्ययन ही इस मार्केट में आपको आगे बढ़ा सकता है और आपको लाभ दिला सकता है। अ- अंदाज से काम करने से कभी कभी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लगातार प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो आपको निश्चित रूप से अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जैसा आरुष ने बताया कि उन्होंने अपनी यंग एज में देखा अपने पेरेंट्स को कि वो टीवी पर देख करके वो कर रहे थे, उसके बाद इनके अंदर एक प्रेरणा उठी कि हम इसके संबंध में स्टडी करेंगे और इसके डीप में जा करके इसको पकड़ेंगे कि कैसे ये मूवमेंट्स होते हैं और इन मूवमेंट को कैसे कैच किया जा सकता है। तो ये प्रेरणा अगर सब लोगों को मिलेगी तो शायद आपका ये स्पेस करना काफी सार्थक होगा। और मैं आरुष जी से फेस कहूंगा कोई मतलब अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में जो आप लोग सजेस्ट करना चाहें, कुछ बुक्स बताना चाहें, मतलब प्राइमरी बुक्स कौन कौन सी, 1-2 बुक पढ़ने जिससे कि इनको कुछ स्टार्टिंग में हेल्प मिले। और कुछ पैटर्न जो उन्होंने बताए हैं उसे बहुत सारे पैटर्न बता दिए, लेकिन आरुष जी अगर उचित समझे तो 2-3 पैटर्न, सिंपल पैटर्न 3-4 बता दीजिए, जिससे कि वो पहले स्टार्टिंग में जैसे होता ना ये ABCD सीख करके ही आदमी फिर आगे बढ़ पाता है, तो टफ की जगह में जो इजी पैटर्न्स हो जिनसे आइडेंटिफाई किया जा सकता हो, एक ब्रीफ में आप बता देंगे तो शायद सब लोगों के लिए काफी उपयोगी रहेगा। Also, Arush, if you would like to talk about biases like anchoring bias and also that would also be great. राइट। सो सबसे पहले मुझे खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद आया और आपने मेरी स्पेसेस ट्रिंकर की सुनी और आपको सही लगा, तो मुझे भी आज एक मौका मिला आपके साथ बात करने को और आपकी ऑडियंस के साथ बात करने को, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कौन से पैटर्न्स है और एंकरिंग बायस की बात करी, तो एक्चुअली हमारे माइंड में बहुत सारे बायसेस हैं। हम मार्केट में आते हैं उससे पहले बहुत बायसेस बना के आते हैं और वहीं पे काम खराब होता है। और वी शुड एक्चुअली ट्रेड विदाउट एनी बायस। तो जैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, जो भी मार्केट इज टेलिंग अस, हमको उसी पे काम करना चाहिए, उस पे काम नहीं करना चाहिए न्यूज़ क्या है, दोस्त क्या बोल रहा है, या पड़ोसी क्या बोल रहा है, या पान वाला क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ। उसी पान खाने तो कोई नहीं जाता है आजकल, पर ठीक है, कोई भी दोस्त रिश्तेदार और मतलब अनवेरिफाइड सोर्सेज और आप अगर किसी से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे तो पर्सन थोड़ा सा एजुकेटेड होना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, देन एक्चुअली इट मैटर्स। अदरवाइज जो व्यूज पे आप काम कर रहे हो दैट दैट डजेंट मैटर। और एक और बात, अगर आप कोई एजुकेटेड पर्सन से भी व्यू ले रहे हो या कोई भी अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन से ले रहे हो सकता है आपके सिस्टम में वो नहीं बैठे। सो यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन योर सिस्टम। जो आपका सिस्टम बोल रहा है ना, वही ब्रह्मास्त्र है और वही आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। सो इफ योर सिस्टम सेज बाय, इट्स अ बाय। इफ योर सिस्टम सेज इट्स अ सेल, इट्स अ सेल। सो एक्चुअली स्टिक टू दैट एंड उसके बेसिस पे ही आप काम करो। और पैटर्न्स में मैंने पहले जिससे डिस्कस किया कि डबल बॉटम पैटर्न हो गया, डबल टॉप हो गया, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप हो गया, उस पे आप काम कर सकते हो। हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल पैटर्न, आप ये गूगल कर सकते हो। उसमें आपको एक इमेज के साथ अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और मैंने भी मेरी टाइमलाइन पे कभी हिस्ट्री में काफ़ी सारे पैटर्न्स शेयर किए हैं, सो यू कैन ऑल्सो कीप एन आई ओवर देयर। और आई कीप शेयरिंग दिस एंड प्रोबेबली आई ट्राई टू शेयर मोर इन फ्यूचर। All right. So there are few questions in the comments, Arush. Like I have checked the screener. Based on that, I can see where volume is increasing, but already stock has given 20% return in a week. Then how to select? I think this question has बट been covered, बट right? यू आर सीइंग इट राइट नाउ। शायद आपने थोड़े दिन पहले देखा होता तो आपको पहले ही उसका आइडिया लग जाता। यू वुड हैव फाउंड इट अर्लियर आल्सो। Right. So one is from Tohin. He's asking volume profile intraday indicator को price action से कैसे relate करें? How can we relate it with price action? Simply, if your volume profile is saying a bullish, is giving a bullish confirmation, and your price action is also giving a bullish confirmation, then you should take a bullish bet.
जस्ट द वे वी डू कॉन्फ्लुएंस ऑफ अदर स्ट्रेटजीज, उसी तरीके से इसको भी यूज करना चाहिए। Right, we got few more speakers. So Amar, okay, he got dropped. One is Prakash. So Prakash, you can quickly unmute and ask your question. Hi, good evening, everyone. Arushi, how are I'm you? good. How are you? I'm doing good, thank you. Relating to higher volumes, after consolidation, volumes are real or fake? How do we get justification for that? And again, second thing is percentage of delivery volume is to be considered while checking out the volumes for delivery, of course, for long term or परसेंटेज swing ऑफ trades. डिलीवरी इज अगेन अ फंडामेंटल स्कैनर, जिसके अलग ही प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, बट एज टेक्निकल एनालिस्ट हम सिर्फ वॉल्यूम्स देखते हैं, सिंपली जो वॉल्यूम्स रहते हैं उसको देखते हैं, एंड दैट शुड गिव यू अ फेयर आइडिया कि कैसे आगे प्राइस एक्शन हो सकता है। और आपको देखना है फेक ब्रेकआउट है कि रियल है, तो मैंने जैसा बोला कि ब्रेकआउट के साथ अगर वॉल्यूम आ रहा है तो चांसेस आर हाई दैट इट्स अ रियल जेन्युइन ब्रेकआउट। So you're considering whatever volume, if volumes are increasing, so those are like करेक्ट। real volumes coming in, not for traders. I mean, it's for delivery. These thing investors volume are coming in. जैसे अगर वॉल्यूम बढ़ता है और 15% या 10% की ही ड्यूरिंग द डे डिलीवरी रहती है, तो व्हाट डू यू कंसीडर? आई मीन दैट इज प्योरली एंड प्योरली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, और आई मीन deliveries are also increasing, investors are also coming in and they are showing their interest. How do you We just cannot analyze that categorize thing? its trading वॉल्यूम और इन्वेस्टिंग वॉल्यूम। हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वी एक्चुअली कंसिडर वॉल्यूम एज वॉल्यूम, एंड इफ it's accompanied at time of breakout, so that's actually a positive sign and denotes that buyers are aggressive and they're interested in the stock. So that's how I would read it. And if buyers are interested, then probably they are to and they are waiting to sell the stock at higher price. So there's some upside in that Oh, content. thank you, Harish. So, guys, please make sure you ask crisp questions so that we are running of time. So, every last five speakers. So, yeah, Amar, you can go next. Yeah, sir, as I have asked the questions and sir has already replied that I am checking right now. But suppose I am checking right now the screener and I can see that many stocks have given 20% return in last 1 week, but there are few stocks like Railtel Corporation, so it has given 8% return in last 1 week. तो हाउ टू सेलेक्ट मीन्स मैं सेलेक्ट कैसे करूंगा? सपोज अभी इस स्टॉक ने जैसे 8% रिटर्न दिया हो, तो मैं इसको क्या प्राइस एक्शन के साथ टैली करूंगा एंड बेस्ड ऑन दैट चार्ट पैटर्न मैं सिलेक्ट करूंगा? Yes, आप प्राइस एक्शन के साथ टैली करेंगे। ओके, मीन्स जिसमें सर सपोज जिसने लास्ट 1 वीक में रिटर्न बहुत कम दिया है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मैं उस चार्ट पैटर्न को फॉलो करके वहां पे क्या ब्रेकआउट वगैरह क्या हो रहा है उसके बेसिस पे फिर मेरा ट्रेड होगा, राइट? हाँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है और आपको उसमें कुछ बुलिश पैटर्न दिख रहा है या कुछ बुलिश ब्रेकआउट दिख रहा है, तो आप उस पे थोड़ा सा रिलाई कर सकते ओके, हैं। थैंक यू अजय, अमर, हेलो सर। हेलो। हाँ नमस्ते। सर अभी वो मेटल में कुछ न्यूज़ आई थी एक्सपर्ट ड्यूटी का वो सब, तो आपका थिंक क्या है दिसंबर में क्या होगा मेटल पे? आपका थिंक क्या है? देखो, मैंने एक पोस्ट डाला था कि मेटल्स आर अबाउट टू ब्लास्ट, तो वो मैंने जब डाला वहां से अभी काफी अच्छी खासी तेजी आ गई है मेटल्स में। और अभी आगे क्या होगा वो हमको नहीं पता। अगर चार्ट्स बोलते हैं कि बेरिश, तो हम उस बेरिश चीज को बिलीव कर लेंगे। तो जो चार्ट्स बोलेंगे हम उस पे रिलाई करेंगे। अभी तो हाल फिलहाल थोड़ा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आया है इसमें। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो Yeah, सर, Vidruji. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि अभी ये अच्छा टाइम है क्या आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का? और स्पेशली बिरला सॉफ्ट एक डेट फ्री कंपनी है, तो उसके बारे में प्लीज़ गाइड करें। बिल्कुल, आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जहाँ पे इतने सारे लोग फंसे हुए हैं आईटी में, सबके पास टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तो होगा ही। पर मेरे हिसाब से ये एक अच्छा समय नहीं है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आईटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, क्योंकि अभी इसका जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है अभी। और यहाँ पे एक
अगर इफ यू आर प्लेइंग फॉर 5 to 20% अपसाइड तो कोई भी स्टॉक में आईटी काउंटर में काम कर सकते हैं, पर अगर लंबी तेजी के लिए काम कर रहे तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत लंबी तेजी आएगी। 20 to 30% के लिए अपन कर सकते हैं। नहीं, 5 to 20%। ओके सर, थैंक यू। विद्रोही जी का क्वेश्चन हो गया, सो प्रवीण यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हेलो। हाँ हेलो बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। जी आरुष सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे कि आपने अभी वो स्टॉक का बॉटम ढूंढा है ना। इन द मीन टाइम राहुल जी आप अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। Hi, good evening, Arush. Hi, very good evening. Sir, can I be a bit stock specific here? Okay. सर मुझे आपसे IEX का पूछना था। IEX में let's say for the next 5 to 7 years if I let's say इतना horizon लेके चलते हैं तो उसमें क्या prospects हैं, like कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज की भी बातें हो रही हैं and I think carbon credit is going to be a like big thing क्योंकि जितना क्योटो प्रोटोकॉल और ये सब चल रहा है, तो आप क्या सोचते हो इस बारे में सर? राइट, सो आई थिंक देखो 5 से 7 साल बहुत बड़ा समय होता है। अभी यू सॉ क्रैश इन 2020 और फिर उसके बाद कैसे सब थीम्स बदल गए। प्रायर टू 2020 ऋतिक स्टॉक्स चलते थे, फिर बाद में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स चले और आज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स सबसे ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उससे पहले सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएटर बने थे। फिर ये चाइना प्लस थीम आया, फिर यूरोप प्लस थीम आया और रोज नए नए थीम आ रहे हैं। तो एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से 5-7 साल में क्या होगा। अगर आप खुद भी एनालाइज कर रहे हो तो नोबडी नोज कि यार 5-7 साल में क्या होगा। 5 महीने बाद का ट्रेंड नहीं पता चलता। मार्केट्स हैव बिकम सो डायनेमिक बिकॉज टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिस्ट्रप्शन इतना बढ़ गया है एंड थिंग्स आर ऑन फास्ट ट्रैक। तो ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं आज की तारीख में। और इवन आज तो कंपनीज क्या कंट्रीज का भी कुछ नहीं कह सकते। यूएसए में क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, यूरोप में क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। पीपल आर टॉकिंग ऑफ रिसेशन इन दीज कंट्रीज। तो अगर रिसेशन आ जाता है तो फिर से आपके थीम्स फिर से बदल जाएंगे। और एक बड़ा इवेंट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि काफी सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है और इंडस्ट्री के पूरे डायनामिक्स बदल जाते हैं, फंड फ्लो बदल जाता है। जैसे 2020 के बाद जब इजी मनी हो गया तो आईटी में बहुत पैसा ज्यादा था इसलिए चल रही थी, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इसलिए चल रही थी। अभी फंड सप्लाई बहुत ड्राई अप हो गया तो ये सारे सेक्टर्स एक्चुअली वर्स्ट परफॉर्मर बन गए। तो दीज डायनामिक्स आर वेरी variables are very dynamic. You can't say from 5 to 7 years. At least very difficult for me to say क्योंकि trends are changing very fast right now as I see. तो आई कांट से कि 5-7 साल में क्या होगा। आप थोड़ा सा छोटा नजरिया बना के चलो, फिर उसको रिव्यू करो कि आगे इसको रखना है कि नहीं। एज पर द ट्रेंड फंडामेंटल्स कंपनी की कमेंट्री एनुअल रिपोर्ट उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि करना है कि नहीं। यू कैन पीरियोडिकली रिव्यू इट बट राइट नाउ कीप द ड्यूरेशन लो टू 1 to 2 years. Right. So, All right, copy. Thank you. thank you, Rahul. So before coming to Praveen and stock market, like Karush would like to know something about the Darvex box you just talked about some time ago. So if you would like to tell our audiences about it. Basically, it's a consolidation pattern wherein the stock is stuck in a small box-like pattern, and also you can say a rectangle pattern. And in that case, what happens is that there's an equilibrium between buyers and sellers, and stock is not able to find a fresh trend. But because a fresh, some fresh triggers happen, which could be fundamental in nature or technical in nature. Like technicals could be volumes of fundamental. There could be some good news flow from the company, like it could be some merger or acquisition, some good profits, etc. Because of that, the stock breaks out of that consolidation pattern and runs for a prolonged period of time. Because now sellers are overwhelming. Selling is buying is
a very strong force right now, and it's absorbing all the selling. So hence the stock runs for some prolonged period of time. Right. Once So they're Praveen, ready. please unmute and ask. हेलो। हाय आरुष सर। Hi. तो आरुष सर, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने जो बॉटम ढूंढा था नायका पेटीएम, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम तो नहीं याद है स्क्रिप्ट का, बट जो भी था तो उसके पीछे आपका प्रोसीजर क्या था? क्या आपके मतलब आपने उस स्टॉक को फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइंड कैसे किया, आपके रडार में कैसे आया? फिर आपने उस पर काफी बड़ा थ्रेड डाला था, फंडामेंटल्स मैच कर गए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल्स आपने एक्यूरेट, मतलब फंडामेंटल्स का रन होने का टाइम भी एग्जैक्ट वही कैसे था? जैसे कि आपने कुछ कहा था कि कंपनी के ये ग्रोथ अच्छे है, नए इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ रहा है, बट एक्चुअल में जो आपने 2-3 दिन में उसका जो मोमेंटम हुआ 9%, 10%, हाउ, मुझे वो जानना है, प्रोसेस जानना है मुझे। Correct. So I think you're referring to Policy Bazaar. हाँ हाँ, पॉलिसी बाजार, हाँ एग्जैक्टली पॉलिसी। हाँ, तो पॉलिसी बाजार में क्या है, एक तो मैं एक थीम, मैंने एक थ्रेड लिखा था पूरा पॉलिसी बाजार के जी ऊपर एंड स्टार्टअप स्टॉक्स के ऊपर। मैंने इसमें ऐसा जी। बोला कि जो स्टार्टअप स्टॉक्स है ना वो कुछ ज्यादा ही हैमर हो गए अभी, और अभी दे आर ओके। राइट मीन रिवर्शन कैंडिडेट। तो स्टॉक मार्केट यूजुअली मीन रिवर्ट्स फ्रॉम वेरी हाई लेवल्स टू मीडियन एंड फ्रॉम वेरी लो लेवल्स टू द मीडियन। तो वो थीम एक तो इसमें प्ले आउट हो रहा है, और दूसरी बात क्या है कि उस समय ब्रोकरेज अपग्रेड भी आया था उसके ऊपर। हाँ, अच्छा। आई थिंक मॉर्गन स्टैनली का आया था, और सिटी का आया था शायद। तो ग्लोबल ब्रोकरेज ओके। हाउसेस का इस पे अपग्रेड आया था, और उन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट ऐसा कह रही है कि दे एक्सपेक्ट थोड़ा सा ज्यादा उनकी सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं, और दे आर एक्सपेक्टिंग बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर द कंपनी। तो मैंने वो मैनेजमेंट के वर्ड्स को कोट किया था, और जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस है उनके वर्ड्स को कोट किया था, और जो फैक्ट्स और फिगर है मैंने उसको रखा था इस तरीके से, और मैंने टेक्निकल्स भी कंबाइन किए थे। तो आपके जो टेक्निकल्स के जो पैरामीटर्स थे वो क्या थे? मतलब आपने जो स्टॉक का उस दिन जिस दिन आपने वो डाला था, शायद मार्केट 3 PM के बाद ही आपने वो ट्वीट किया था, देन मैंने उसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया था। उस टाइम कुछ मूवमेंट नहीं था, और नेक्स्ट डे में देख रहा था उसका प्राइस मतलब काफी ज्यादा अप था, रॉकेट हो चुका था वो एक्चुअल में। तो वो एग्जैक्टली आपने जब मॉर्निंग में ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और किस बेस पे और क्या पैटर्न देख के किया था, मुझे वो जानना है। कि आपने मॉर्निंग में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या उसका प्रोसेस क्या था? क्या दिखा आपको उसमें ऐसा कि जो इंटरेस्टिंग लगा आपको बाय करने के लिए? और आपने उसमें काफी बड़ा पैसा डाला था, मैं भी शायद मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो कुछ 1 CR के अराउंड है ना? राइट। हाँ, तो वो इतना पैसा डालने का गट और इतना वो कैसे, मतलब मुझे जानना है। एक्चुअली मैंने जैसा बोला कि मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूँ, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे ऐसा लगा कि ये कई बार होता है, मैंने जैसे बोला मीन रिवर्शन कैंडिडेट बन गए कि इसमें कुछ ज़्यादा ही अभी सेलिंग आ चुकी है, और अब इसमें थोड़ा सा अपसाइड का पोटेंशियल बन रहा है, और वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं। मैंने जब ये लिया था दैट वाज ऑन 17 नवंबर, और इससे पहले वॉल्यूम इसमें काफ़ी सारा बढ़ चुका था, इसमें काफ़ी सारी बल्क डील हो रही थी, और फिर ब्रोकरेज हाउसेस का भी अपग्रेड था, टेक्निकल्स भी सही लग रहे थे। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट मुझे लगा कि इसमें अच्छा अपसाइड हो सकता है। जैसे कि अब मैं आपको एक अभी जैसे आप किसी को बता रहे थे कि किसी का क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही था, रिलेटेड था कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे तो गिरे हुए स्टॉक को क्यों बाय करना। आपने सजेशन दिया था कि नहीं करो, बहुत सारे अदर स्टॉक भी है जैसे आपने रेफरेंस किया। तो वो भी स्टॉक्स दोनों 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहे थे, और आप कह रहे हो मीन रिवर्ट करते, तो यानी वो अराउंड 21 और 55 EMA के पास शायद वो कंसोलिडेट भी कर रहे थे स्टॉक्स। हम्म। तो आपने फिर वहां जजमेंट कैसे बना लिया कि ये तो ठीक है ना, वो कंसोलिडेट ही कर रहे थे और वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे थे, आपके फंडामेंटल्स मैच हो गए, पर एग्जैक्ट टाइम पे प्राइस मैच हो गया, वो टाइमिंग कैसे करें? क्योंकि हर हर बार तो नहीं कर पाएंगे, वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट ऐसे अगर 5 स्टॉक भी कर लिए
भले ही साल भर में 5 स्टॉक भी कर लिए और कुछ कुछ उसमें से रिटर्न भी आ गया तो काफी है ये तो। ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है अगर इस थ्योरी पे भी काम करे तो। हम्म। तो कुछ सालों बाद ही आता है ऐसा करना। हाँ नहीं, जी जी मैं वो समझ रहा हूँ, बट वो एक्चुअल मुझे मैं टाइमिंग का जानना है कि वो राइट टाइमिंग कैसे करे मैं फंडामेंटल्स के साथ। वही है इसमें कि देयर इज नो थंब रूल। मैंने जैसे बहुत बार रिपीट किया कि कोई थंब रूल नहीं है। मेरा डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग ऐसी है कि उसमें कोई थंब रूल नहीं होता आपका। और आपको ओके ओके ओके, मैं एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। उस दिन आपने जो ट्रेड लिया काफी बड़ा फंड है, मेरे लिए तो काफी बड़ा फंड है, आपके लिए होगा नहीं होगा। तो आपने मॉर्निंग में क्या कुछ पैटर्न सीन किया, कुछ ऑब्जर्वेशन मॉर्निंग का जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया? देखो कुछ पैरामीटर्स या वॉल्यूम्स दिखे आपको, क्या दिखा जिससे आपने एकदम ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया? वही मैं जो इतनी देर से बोल रहा हूँ, वॉल्यूम्स है उसमें इतनी सारी। लुक एट प्रीवियस वॉल्यूम। वॉल्यूम इन दैट वीक। वो वॉल्यूम चेक करना है एक बार, यू विल गेट एन आइडिया। तो वॉल्यूम को टॉप पे चेक करना है बॉटम में या मिड में कर सकते हैं, कहाँ ज्यादा अच्छे से काम करेगा? देखो मैं क्या बोल क्योंकि रहा हूँ कि मैंने देयर आर नो रूल्स इसमें। एक कोई थंब रूल नहीं है, या मैंने अगर बोल दिया 1+1 2, ऐसा नहीं है। जी जी इसमें काफी सारे वेरिएबल्स है। और वो मैंने एक्सपीरियंस इसलिए बोला क्योंकि सिचुएशन ए में किस तरीके से वर्क किया था, सिचुएशन बी में किस तरीके से वर्क किया था, सिचुएशन सी में किस तरीके से वर्क किया था, उस हिसाब से मैं अगर आप एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। बुरा ना मानो तो कुछ वेरिएबल्स मैं यहाँ पर डिस्कस किए जा सकते हैं। मैं अभी स्पेसेस में सब डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको जी जी मोटा ओके मोटा ओके बता सकता हूँ कि ओके देयर आर ओके नो थंब रूल्स, बट एक्चुअली यू वर्क ऑन द बेसिक थियरीज एंड दैट आल्सो यू हैव टू सी कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है। सो इफ यू ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन, you'll gain it yourself. So something you have to gain on yourself also. और वो ओके एक्सपीरियंस से ही आएगा। और ओके। थोड़ा गिर के ही आएगा, थोड़ा गिरना पड़ेगा पहले। जी 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 You'll get Thank it. you, जी Praveen. समझा। Next is stock market scientist. Yeah, you can ask. बहुत बहुत धन्यवाद आरुष भाई। हम्म। मैं सुन रहा था पिछले स्पीकर की बातें तो मैं यही पॉइंट बोलूंगा किसी मार्केट जो है वो सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो। जैसे आरुष भाई ने भी कई ऐसे स्टॉक लिए होंगे ऐसे प्राइस पे जो नहीं चले होंगे, राइट, एसएल हिट हुआ होगा। तो उसमें कुछ नहीं है कि ऐसा हर बार वैसे ही हो, बट मीन रिवर्जन जो बोले थे बहुत सही बात है। सर इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि इसके पहले एक स्पीकर डारवास बॉक्स के बारे में बोल रहे थे, तो मैं भी उसी को फॉलो करता हूँ। और मार्क मिनेविनी का जो ट्रेंड क्राइटेरिया है उसको फॉलो करता हूँ, जिसमें कि वो बोलते हैं वॉल्यूम कंट्रैक्शन है ना, एक पर्टिकुलर पिवोट पॉइंट पे होता है, वहां से फिर ब्रेकआउट अच्छा मिलता है। बट मैं पिछले 3 महीने से देख रहा हूँ कि मार्केट कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब इस थ्योरी को। काइंड ऑफ वॉल्यूम ड्राई अप तो होता है, अच्छा मूव रहता है 30%, 3 महीने में 2 महीने में वॉल्यूम ड्राई अप होता है, बट हम लेते हैं जैसे ही उसके बाद वो हार्डली 5% 7% जाता है, फिर आपका नीचे चला जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी मार्केट का कंडीशन है वो आप एसेस कैसे करते हो? काइंड ऑफ मैं तो बहुत कम पैसे डालता हूँ जब भी मेरे एसएल हिट होते हैं। तो आपका क्या इस पे स्ट्रेटजी होता है जब आपके एसएल हिट होते हैं, बार बार आप लेते हो, हिट होता है, तो हाउ डू यू असेस द मार्केट कंडीशन? करेक्ट करेक्ट। तो आपने बहुत सही बोला। और देखिए मार्केट का एनवायरनमेंट अभी इस तरीके का चल रहा है। वॉल्यूम डिस्टर्बेंस आ रहा था, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी आपने एकदम करेक्टली बोला कि अभी का एनवायरनमेंट ऐसा चल रहा है कि देर आर सम फेल्ड ब्रेकआउट्स। और जब रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा था तब भी मार्केट ऐसा ही था, चॉपी था। एंड देयर वर ब्रेकआउट फेलियर्स, और कोई एक सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं मिल रहा था आपको। तो ऐसे फेजेस आते हैं, इन दैट केस यू हैव टू स्टेप बैक, जैसा कि आप अभी करेक्टली कर रहे हैं, यू आर स्टेपिंग बैक। तो दैट्स अ गुड अप्रोच, and that can be gauged by understanding the market breadth and how the trends are actually developing. So उसके basis पे आप एक decision ले सकते हो। और when the time is good, तब आप अच्छा पैसा बनाओ, जैसे 2020 है, 21 है। when there are some continuation of trend follow up है, तो तब actually बाहर जाके सिक्स मारने का समय है। हाँ, डिलेमा ये है कि मैं ज्वाइन कब किया मार्केट को, जब ये सब कोविड क्रेज के बाद जब मार्केट बुल हो गया था, पूरा एंड चल रहा था, एंड फेज, लाइक लास्ट ईयर ऑफ अक्टूबर नवंबर,
जहां से मार्केट एक्चुअली डाउन ट्रेंड में चालू हुआ वहां से मैं एंट्री किया हूँ मार्केट में। तो काफी मैं डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता हूँ मार्क मिनी को, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो मेरा ओवरऑल जो है वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा निगेटिव में हूँ। मैं हमेशा अपना कैपिटल को प्रिजर्व करके चल रहा हूँ, तो हार्डली कोई 2-3% अप रहूंगा इस टाइम पे। तो हाँ, आपने सही कहा कि मैं अभी वही प्रोग्रेसिव एक्सपोजर का जो उनका टेक्निक है वही यूज करता हूँ। तो अभी फिलहाल पिछले 7 दिन में तो मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहा है। जो मेरे 2-3 टारगेट थे वो छोटे छोटे ट्रेड वाले वो सब हिट हुए हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो आपका क्या इस पे थॉट प्रोसेस है? अभी टाइम ऐसा दिख रहा है कि एक्सपोजर बढ़ाया जाए, या फिर ये अगेन जो करेक्शन का जो छोटा मोटा बुल रैली है वो चल रहा है अभी? देखिए, आप 2-3% प्लस होंगे, पर आपके थॉट्स काफ़ी मैच्योर्ड है और आपके जो अप्रोच है काफ़ी अच्छा है, सो आई शुड अप्रिशिएट दैट। और ऐसा नहीं है कि आपको आते ही पैसे बना लेने, अभी थोड़ा टाइम अगर आप लेंगे चलेगा, बट इफ़ योर अप्रोच इज़ राइट, सूनर और लेटर यू विल मेक मनी। सो दैट इज़ वन थिंग। और मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देने का समय एज ऑफ टुडे, आज की क्लोजिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ऐसा समय नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ब्रेथ बहुत पार्टिसिपेट बहुत एनकरेजिंग नहीं है। Right, Arush. So, guys, in the want of time, I have to conclude the session. And initially, it was planned for 1 hour, but it got so much interesting that we extended it to almost 2 hours. So, if any questions from anyone were left, so those guys can type in their question and tag us so that we'll try to get the answer from Arush. Or in the other case, the DMs are also open, so you guys can DM the questions so that if the questions would be relevant, surely those will be answered. And again, any names taken by the guest or maybe requested by the attendees are purely case studies or maybe for illustrations. Please do not, before making any decision, contact your financial advisor, because we are not here to give any kind of buy sell recommendation. Purely the thought process has to be understood and taken as a starting point, so as to start your journey from there, so that you can benefit in your long journey. So Arish, thank you again. Thank you so much for coming, and surely we'll connect in future as well. It was great interactive session and we learned a lot, and again we'll be in touch. And yeah, any concluding remarks you want to say or anything about our spaces? Thanks, Prince. It was a great experience, interacting with you and your community and sharing some learnings with all of them. And we'll stay in touch for sure. Thank you. And once again, guys, like if you're liking our spaces, you have a small responsibility of sharing your feedback, positive, negative, all acceptable, but the word should be good. Good in the sense like you have to be considerate in writing, right? So again, I have a YouTube channel over which these spaces are placed, so that those who cannot attend live can revisit at some point in time. And also, if you're liking our work, please follow our handle so that we get the necessary motivation to bring more learned people, and we all can create an ecosystem where we learn together and make a good wealth over a period of time. And again, we need to identify what works for you, as rightly said during the conversation by Arush. So you need to identify you are made for the derivatives or trading or not. And as rightly said, biases and the behavior thing need to be taken care of, because it is emotions which hurt you bad, and market is one place where discipline is of utmost importance. So thank you again, and thank you, Arush. We'll wrap up now, and it was a great session. Thank you.